session. Okay, so KNN. So KNN is very simple algorithms, very simple algorithm, and it works more or less like humans. Okay, just more or less how we recognize the people, how we understand the people. So this is how the KNN work. Let's say I just want to make a presumption about a people or I'm on man or woman or any second or third person. So I just see ki what kind of people he meets, what kind of the group he's having, what kind of industry he's working with. So then after that I can make a perception about him. So I can just look about his friends, his colleagues, his relatives, or what kind of society he's interacting or living with. So I can have a more or less fair idea about him. So let's say if I have a student then who generally sit, who is a backbenchers and who just play with the uh, some some sort of the student. So then I have understanding what kind of a student he is. So generally how we understand the people in such a way. So we just look for their neighbors or we look for their friends. Then we have an idea कि ये इसका behavior कैसा होगा and what would he like. So in such a way, the k nearest neighbor is work in such a way. Okay, when I just trying to find out, when I trying to find out, or when I'm going to predict, okay, for any of the data, so I will just try to find out the neighbors. What are the its neighbor look like? Okay, so and on the basis of that, I will try to predict कि if इसके neighbors ऐसे हैं, तो it would be more like same thing. Okay, क्योंकि अगर आपके neighbors ऐसे हैं, that means you are sharing the same interest, you are sharing the same kind of nature, you are sharing them more or like hobbies, so that's why you are friends, that's why you are neighbors. Okay, so if your group or your group की जो आपकी identity है, that becomes the identity of you. Okay, so that is how it works. So k-nearest neighbor भी ऐसे ही काम करता है, more or less same thing. Okay, so let's see how it actually implemented for the machine learning. Okay, so k-nearest neighbor is a supervised learning algorithm. Okay, first thing, supervised learning algorithm that classifies a new data point into the target class depending on the features of its neighboring data points. So ये क्या करता है, it will look कि what the new record is coming, okay, and it will try to find out its neighbors, okay, on the basis of the features. Okay, let's say कि let's for example, this is a new data that is coming to me. Okay, then it will compare, it will try to find out its neighbors on the basis of the features. Let's say kiski, what the length of the tail, okay, what is the body size, the height or length, or the ear size or the eye size, whatever. So it will try to find out the neighbors on the basis of the its features. Okay, let's say these are the two classes. This is cat and this is dog. So it will try to find out its neighbor. Okay, and let's say it will try to find out 10 neighbors. Okay, okay, on the basis of the feature similarities, and on the basis of feature similarity, when it find out the two groups, this is first group and this is second groups, and it will just find out कि इसके जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स सिमिलर हैं, कौन से ग्रुप के सिमिलर हैं. इट इज सिमिलर टू दिस ग्रुप और सिमिलर टू दिस ग्रुप. अगर सिमिलर है इस ग्रुप के लिए तो इसको ये प्रेडिक्ट कर देगा, अगर इस ग्रुप के सिमिलर है तो उसको ये प्रेडिक्ट कर देगा. So this is how more or less it works. So let's go into the detail. So let's say कोई भी नया रिकॉर्ड आया मेरे पास, so I will see the feature similarity. Let's say I have only two features, the length of the ears and okay, length of the ears and the sharpness of the claws. Okay, so on the basis of that I can divide into two groups, the cat on the dogs. Okay, let's say cat will have the long ears and the claws are more or less they are less sharp, so they will come to this category. And the cat, they have sharp claws but the ears are small, so they have the different categories. So I can divide two classes on the basis of their feature similarity or dissimilarities. Okay, so whenever a new data is coming, so I will find out its neighbor, okay, on the basis of the feature similarities.
whether this the new data is coming would be similar to this category or similar to this category on the basis of the features. Okay, so why KNN? KNN is based on the feature similarity. We can do classification using the KNN classifier. Okay, same चीज input आपका आएगा, then you are comparing with class A or class B in the same the features, and we predict the output values. So KNN K-nearest neighbor is one of the simplest supervised machine learning algorithm mostly used for the classification. Okay, it classifies a data point based on how its neighbors are classified. Okay, first it will try to find out कि basically इसके neighbors कौन कौन से हैं on the basis of the feature similarity. ठीक है, let's say एक नया record आया, this I will try to find out all the neighbors. ठीक है, let's say मैंने लेकर मैं इसके 10, I just want to find out 10 nearest neighbors of it. Okay, so I will find out 10 nearest neighbors on the basis of feature similarity. Okay, let's say I find out 10 nearest neighbors, and let's say out of 10, what is the majority class they are belonging to? Okay, let's say out of 10, let's say 7 are belonging to the dog class and 3 are belonging to the cat class. Now the majority is belonging to the cat class. No, so I am going to predict new record as a cat class because this is where the majority belongs. So this is how the KNN works. Simply, very simple algorithm. Okay, so let's see these examples. So what actually KNN does? How does it work? So KNN stores all available cases and classify new cases based on the similarity features. So KNN is a parameter that refers to the number of nearest neighbors. So सिंपल तरीके से काम करता है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू whenever the new data is coming, it is going to compare with each and every data points. Okay, the new data is getting compared with each and every data points or each and every data records that is available to me for the training data. Okay, for the training of the model. So then let's say then I will set a parameter k, that is a hyperparameter, that how many neighbors I am going to find out. Okay, let's say k is equal to 10. So I am going to find out 10 nearest neighbors. Okay, and what is the basis to find out the nearest neighbor? That is a feature similarity, ki how many features are similar. Okay, so on the basis of feature similarity, I am going to compare this new record with each and every record that is available to me for the training. Then I will find out the k nearest neighbor to me. Okay, okay, then out of 10, okay, what is the category where the majority belongs? Okay, then I am going to predict the same thing with the target. What is my new record? So it belongs to the, so this process called the majority voting process, where the majority belongs. So where the majority belongs, I will predict the same thing with the my new record. This is how it works. So let's say this is my chloride level. I have two kind of wines. Let's say this is, I have two wines, and this is red wine, and this, let's say, white wine. And I have only two features, one is chloride level and second, let's say, sulfur dioxide level. Okay, and this is how they are placed on the basis of two features. Let's say new wine is coming. Let's say this is a new wine. Okay, so I am going to predict on the basis of two features. This I'm going to two features, key whether it belongs to the red wine or the white wine. Okay, so what I'm going to do, so I will, let's say, k is equal to 5. So I will try to find out k 5 nearest neighbor. So here we can see what is the 5 nearest neighbor. 1, 2, 3, 4. Let's for example, there are 5 nearest neighbor. Okay, so here the majority belongs red wine. So what I'm going to predict? Red wine. Okay, simple. So सर ये k इक्वल टू 5 लिया है हमने, तो हमने ये कैसे पता चलेगा कि 5 ही नेबर यही वाले लेने हैं? इसको हर रिकॉर्ड में जाके चेक करना पड़ेगा या फिर कोई भी रैंडमली उठा लेगा? नहीं, k is hyperparameter कि how many neighbors you want to compare to do the final prediction. Okay, how many you want to find out. So this is a hyperparameter this you have to set. Okay, so
दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको के क्या रखना है. सो के जनरली 1 नहीं से सर, लेके मैं ये पूछ रहा हूँ हम्म, कि हमने के कुछ भी रख दिया, ठीक है, तो हम्म, लेकिन ये 5 नेबर्स यही वाले कैसे उठाए इसने? तो वो वो हर रिकॉर्ड में वो जाके देख रहा है दैट विल उनकी सी, वैल्यू। दैट विल सी. जो हम कह रहे हैं कि इट विल फाइंड आउट द नेबर्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर सिमिलैरिटी. ओके, और फीचर सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल फाइंड आउट. वी हैव डिफरेंट फंक्शंस फॉर दैट कि हाउ विल फाइंड आउट द फीचर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. ओके, ठीक दैट है विल सी. सर, ठीक है। Okay, so there is no ट्रेनिंग एज सच फॉर द केनन. केन में कोई मॉडल की ट्रेनिंग नहीं होती. जैसे कि आपने नेम वाइज में देखी, आपने linear regression में देखी, that you have seen the logistic regression, that first we have the training data and we are going to create a model. Okay, okay, on training of the data, then you have a model, and on then you are going to save that particular model, and that model is going to be used for the prediction. This is not how the things works for the KNN. There is no training of the model, no final model is there, no model is created. Okay, so what actually happens, it is going to store, let's say you have 1 million records for the training. Okay, so you just going to load all the 1 million records on your RAM. Okay, fine. So after you have loading, you have loaded all the data in your RAM or your memory, then you are going, let's say new data is coming, so then you are going to compare that new data or the new record with each and every 1 million record on the basis of some similarity functions. Okay, and then you are going to find out k nearest neighbors. Okay, then you will see what is the majority class and you just predict it. So there is no training involved as such. Okay, so training cost is zero. Okay, but what is the complexity? We have the space complexity. We need a very large memory. If we have a big data, then we have to store that your data is always in the main memory. Okay, and if you have millions of the records, 100 millions of the records, then you need a lot of memory, because that is always available in the memory for the prediction. It is not like that you have used the data, you have made the model, then you are going to use that particular model for the prediction. No, it is not like that. You have to have all the data in your memory all the time, so that whenever the new data is coming, you are going to compare the new data with all the existing data, and then you are going to prediction. So time complexity is less, okay, but the space complexity is very high in case of the KNN. Okay, fine. So in case of classification, how you are going to do in case of classification? What is the majority? On the basis of majority, you are doing the classification, and in case of regression, you are just taking the average of all the values. Okay, here. Rajat, Mm-hmm. Puneet, so basically, just trying to understand, like, where will be the practical application of this kind of प्रैक्टिकल KNN? एप्लीकेशन होता है कि व्हेन योर डेटा इज शॉर्ट, आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में आपकी केनन फास्ट हो जाती है. ओके, सो केनन आपकी जनरली आपकी यूज होती है, आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, आपको बेसिकली आपको रिकमेंडेड सिस्टम में पहले बहुत यूज होती थी. व्हेन यू हैव द लेस डेटा, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है, वैसे कम डेटा है तो इसमें ट्रेनिंग टाइम आपका नहीं होता है. ओके, सो दिस इज उस केस में आपकी बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे भी आते हैं, केनन के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं. ओके ना, so when you have less data, okay, so it become very pretty fast and result are good, so you can use the KNN algorithm. तो classifier में यूज होती है आपकी रिकमेंड सिस्टम, पहले यूज होती थी, इवेंट आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में भी यूज होती है, ठीक है ना, तो वी विल सी एग्जांपल ऑफ इट. ओके, लेकिन बहुत बड़ा डाटा सेट आपके पास, अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स है तो उस केस में आपकी बहुत स्लो हो जाती है. स्लो का मतलब नॉट स्लो तो नहीं होगी, लेकिन आपको आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए होगी इसको. ओके, तो दैट इज लिमिटेशन ऑफ इट. आपके पास डाटा सेट बड़ा है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो. ओके, इस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो यू जस्ट टेक द मेजॉरिटी क्लास. अगर आपकी रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज यू हैव KNN फॉर द क्लासिफिकेशन एज वेल एंड यू हैव द KNN फॉर रिग्रेशन एज वेल. तो रिग्रेशन में आप क्या करोगे, बाकी जो भी आपके के नियरेस्ट नेबर निकाले हैं उन सबका आप एवरेज ले लोगे. अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो उसमें आप मेजॉरिटी वोटिंग करा लोगे, जिस क्लास को मेजॉरिटी बिलोंग कर रही होगी आप उसको प्रेडिक्ट कर दोगे. ओके, so features of KNN, this is lazy algorithm. Why it is lazy algorithm? Because
everything is done at the runtime. There is no training involved, so everything is done on the production, everything on the runtime. So it is called a lazy algorithm. Classification and regression algorithm, you can use it for both kind of problems based on feature similarity, right? No training step, right? Supervised learning algorithm, right? Simple, right? Non-parametric. What does that mean? Not parametric. Non-parametric means that when we are using logistic regression or when we are using linear regression, so we have an assumption that there should be a relationship. Even in the naive bias, we have that predictor should be independent of each other. They should not impact. So we have a assumption in the naive bias. Okay. So non-parameter means that we don't have any assumption about the data. Okay. So naive bias have the basic assumption that your predictor should be independent of each other. Okay. So there should not be any covariance. Okay. So that is a parametric algorithm, but KNN does not have any assumption as that. It can work on any type of data. Okay, as far as it is of the not very much big data. Okay, so this is the important feature of KNN because it's non-parametric, so it doesn't make any assumption about the data, and despite of that fact, it gives a very good results. Okay, so these are the features of KNN. तो बुक रिकमेंडेशन में तो रिकमेंडेशन सिस्टम आप KNN यूज होती है बिकॉज इट इज गोइंग टू क्लासिफाई द डेटा रिकॉर्ड्स. नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन काम कैसे करती है? आप इसका इंट्यूशन कर सकते हो. दिस इज नॉट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, बट यू हैव एटलीस्ट अ इंट्यूशन की हाउ डज इट वर्क. सो ईच एंड एवरी डेटा सेट्स को बेसिकली क्या करती है? लेट्स से आई हैव डिफरेंट डेटा सेट्स, डिफरेंट रिकॉर्ड्स. This is the one category and that one is the second category. So how does it work? Yeah, for each and every data record, it makes a cells basically. Let's say this is the record. So it is going to find the distance on the basis of feature similarity. Okay, how it is similar to this record and how much this is similar to this record and how much is similar to this record. So on the basis of this, क्या करता है कि डिस्टेंस के हिसाब से एक डिस्टेंस फंक्शन से आपका डिस्टेंस निकालते हैं, उसके मिड पे आपकी एक एक बाउंड्री बना देती है. दिस इज द बाउंड्री जस्ट मिड ऑफ दैट डिस्टेंस. इससे एक डिस्टेंस फंक्शन निकालेगी, इससे कितना दूर है उसके बेसिस से क्या निकालेगी, उसका मिड पॉइंट निकलेगी. ऐसे इससे लेगी उसका मिड पॉइंट, इससे निकालेगी इससे कितना सिमिलर है, डिस्टेंस फंक्शन के हिसाब से उसका मिड पॉइंट निकाल लेगी. और दिस बिकम्स अ बाउंड्री ऑफ इट. अगर कोई भी डाटा पॉइंट इस बाउंड्री के अंदर आता है तो इट विल बी टारगेटेड, इट विल बी predicted as a blue class. Okay, this is for each and every data it becomes a cell, जिसको हम Voronoi tessellation भी बोल देता हूँ, आपके cells में ज़्यादा यूज होता है. Okay, so this is how it works. So इस तरह आपके each and every data point की आपकी बाउंड्री बन जाती है. So let's say for hypothetically if you want to see the कि आपकी बेसिकली अगर मैं इसको प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि रेड और वाइट, रेड और ब्लू में. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपकी डिवीजन बाउंड्री कुछ इस तरह दिखाई देगी जो मुझे दोनों क्लासेस को मुझे क्या करेगी, डिवाइड करेगी. दिस इज द डिवीजन बाउंड्री. रेड वन अगर वो इसके इधर आ जाता है तो इट बिकम द रेड वन, इधर आ जाता है तो इट विल बिकम द सॉरी ब्लू वन, इट विल बिकम द रेड वन. so this is how the डिवीजन बाउंड्री would look like. So basically वो ईच एंड एवरी डाटा पॉइंट अपने ईच एंड एवरी डाटा पॉइंट से क्या निकालेगा, डिस्टेंस निकालेगा, उसके मिड पे अपनी उसके हिसाब से अपनी सेल्स बनाता चला जाएगा. ओके, सो आपकी नॉन लीनियर डिवीजन बाउंड्रीज बनती हैं. अगर आप देखोगे तो आपकी डिवीजन बाउंड्री वहाँ पे कैसे बन रही थी, बहुत कॉम्प्लेक्स डिवीजन बाउंड्रीज बनती हैं यहाँ पे. जैसे कि अगर आप लॉजिस्टिक में देखो, अगर आप सिंगल डिग्री का लेके चलोगे तो आपकी एक सिंगल लाइन बनती है. ओके, जिसमें जो कि नॉर्मल, जिसमें कोई कर्व नहीं होता. तो आप उसकी डिग्री को इंक्रीज करते जाओगे तो इट विल हैव और ये तो n into n comparisons हो जाएंगे फिर. यस बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड टू एंड कंपैरिजन, वन टू एंड कंपैरिजन होते हैं आपके, एंड टू एंड नहीं. और हर रिकॉर्ड के साथ में करेगा तो n into n होंगे ना. हाँ, वन एंड टू एंड. अगर आपकी सेल्स बना के चलते हो, आप इस तरह से इंट्यूशन लेते हो तो दिस इज वॉट इंट्यूशन. ठीक है ना, आप इंट्यूशन के हिसाब से चलोगे तो फिर आपके एंड टू एंड बाउंड्रीज बनेंगे. दैट इज राइट. ओके, सो आपकी डिसीजन बाउंड्री आपकी कुछ भी आपको ऐसे दिखाई देगी. दिस इज नॉन लीनियर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज आपकी बनती हैं इसमें. ठीक है, आपका शेयरिंग चला गया अजय. शेयरिंग चला गया. ओके, तो लेट मी शेयर इट अगेन.
Okay, now it is visible, right? Yeah. Okay, so in that case में this is just for intuition, ऐसा नहीं कि behind the scene चीजें ऐसे ही काम करती हैं, this is for intuition. Okay, अब इस केस में अगर आपके पास आउटलायर्स है तो एक्चुअली हाउ द आउटलायर्स इज गोइंग टू बिहेव, तो आउटलायर्स इसमें क्या होता है कि आपके प्रेडिक्शन को बहुत ज्यादा हेविली इंपैक्ट करता है. लेट्स से मैंने k इक्वल टू 1 लिया हुआ है, लेट्स माय k इज इक्वल टू 1, कि मैं सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर देखूंगा सिर्फ, ठीक है ना. तो अगर यहाँ पर वो आ जाता है दैट इज परफेक्टली फाइन, उसको देख के प्रेडिक्ट कर देगा कि ब्लू है, प्रेडिक्ट कर देगा एक को देख के. लेकिन लेट्स से हमारे पास एक आउटलायर सिस्टम है वो जो बिल्कुल ब्लू और उसके बीच में आ गया. अब मान लिया कोई भी ब्लू आता है और ब्लू लेट्स से यहाँ आ गया, तो वो बेसिकली इसके ज्यादा नजदीक है, तो क्या करेगा, इसको रेड प्रेडिक्ट कर देगा एज कम्पेयर टू द ब्लू, जबकि उसको ब्लू प्रेडिक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप देखोगे तो मेजोरिटी क्लास आपकी ब्लू है. लेकिन इन दैट से बिकॉज ऑफ अ सिंगल आउटलायर इट प्रेडिक्ट एज अ रेड. सो दिस इज वेरी हेवीली impacted by the outliers. अगर आपके सिस्टम में आउटलायर्स है तो आपकी केरन बहुत क्या परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाती है. सो इफ यू हैव द आउटलायर्स इन योर सिस्टम यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू रिमूव इट, देन योर आपकी केरन की इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी. ओके, सो आउटलायर्स इज अ प्रॉब्लम विद द केरन. ओके, सो हाउ टू चूज के. अब के आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4. अगर आप जितना भी आप के छोटा लेते चले जाओगे उतने आपका आउटलायर्स का इम्पैक्ट बढ़ता चला जाएगा. जितना आप के की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे उतना आपका बेसिक जो है जनरलाइज होता चला जाएगा. लेकिन उस केस में क्या होगा, आप ज्यादा जनरलाइज करोगे तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस. वो मतलब बहुत ज्यादा लिमिट आपको बहुत अच्छा ऐसे रिजल्ट भी नहीं देगा, ठीक है ना. क्योंकि ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा तो बेसिकली इट इज नॉट, इट इज टेकिंग ए लॉट ऑफ नेबर्स इनटू द पिक्चर. अगर आप बहुत ज्यादा कम लोगे तो बेसिकली फिर आप इट इज affected by the outliers. So what is the right value for the k? Just take this example. If we take this example, in this case we can see, let's say this is the data given to me. Okay, what is this? Okay, this, why this is okay. Okay, so how we choose the factor of k? Let's say this data is given to me. Okay, let's say I have taken the k equal to 3. Okay, in that case if you say k equal to 3, so what is going to predict for the new data, this new data? So because majority class is red, so it is going to predict red. Let's say I've taken k equal to 7. In that case this becomes the majority class and it is going to predict this thing. Okay, what is this, whatever. So k actually your affect the prediction, it is actually affect your prediction कि अगर आप k छोटा लोगे तो it more or less affected by the outliers. अगर बड़ा लोगे तो आपका जनरलाइज तो चला जाएगा. तो k actually affect your your आपका prediction कैसे होने वाला है उसका केस आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है वो. So what is the right value for the k? Okay, so how we can choose the key value of the k for the right prediction? So value of the k has a strong effect on a kn performance. Okay, largest value everything classified as the most probable class. अगर लार्ज वैल्यू लोगे तो जो भी आपकी मेजोरिटी क्लास उसको प्रेडिक्ट कर देगी. लेट्स आप जितना बड़ा k लेते चले जाओगे, लेट्स से आपका जो डेटा है वो स्क्यूड है, ठीक है. लेट्स से यू हैव द स्क्यूड डेटा. ओके, इसमें लेट्स से आपकी 5% जो है आपकी सिर्फ क्लास ए है, 95% की आपकी क्लास बी है. तो जितने ज्यादा आप बड़ा के लेते चले जाओगे, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो के होगा, क्योंकि आप नेबर्स निकालो उस केस में द प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम नेबर्स आपके नेबर्स कहाँ से आएंगे, आपके बी क्लास आ जाएंगे. तो उस केस में क्या करेगा वो, जितना आप बड़ा के लेते चले जाओगे उस केस में मेजोरिटी क्लास को प्रेडिक्ट करता चला जाएगा अगर आपका डेटा स्क्यूड है तो. और आप स्मॉल वैल्यू लोगे तो फिर आपकी बहुत हाईली वेरिएबल है, वो आपके आउटलायर से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है वो. ओके, सो आपकी सो इन दैट केस व्हाट इज द राइट वैल्यू? सो दैट इज नो परफेक्ट वैल्यू कि आप की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना. कोई दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस काइंड ऑफ थिंग. बेस्ट प्रैक्टिस है लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप क्या लोगे. सो इन दैट केस यू कैन स्टार्ट विद 5, 6, 10 और 100 तक आप जा सकते हो. 100 से ऊपर ही बहुत बड़ा हो जाता है.
500 तक भी लोग लेते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा डाटा सेट है आपका तो यू कैन गो फॉर द 500। जनरली 0 से 1 से लेके 1 तो बहुत ही हो गया, तो 5 से लेके 5, 6, 10, 20 आप जैसे ब्रैकेट में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन टेक द परफॉर्मेंस ऑन 10, आप 10 पे मॉडल को ट्रेन करो, फिर टेस्ट से परफॉर्मेंस देखो कैसे आ रही है, फिर आप 20 पे ट्रेन करो, फिर 30 पे देखो, फिर देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। फिर आपको 10 और 30 पे देखा, आपने देखा 10 पे खराब परफॉर्म कर रहा है, 20 पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 40 पे और खराब परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब आपका जो रेंज है के वो 20 और 40 के बीच में रेंज करती है। फिर आप उसकी ब्रैकेट बना सकते हो। फिर आप ब्रैकेट आप 5 बना सकते हो, 5 टू, फिर आप 20 पे देखो, 25 पे देखो, 30 पे देखो। सो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस देखो। दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट द कि आपका आपका कौन सा के आपको बेटर तरीके से काम करेगा। सो आपको आइटरेशन करने पड़ेंगे डिफरेंट के साथ, ब्रैकेट बना के, डिफरेंट ब्रैकेट बना के, देन हाउ यू विल फाइंड आउट द बेस्ट के। So Okay. Ajay, so in this case, it will be multiple hit and trial iteration. Yes, right. Multiple hit and trial. So multiple hit and trials, like what will be the limit, like until what level we keep on trying. लीड में ऐसा है कि जैसे कि आप लेट से आपने 30 पे उसको ट्राई किया, 30 पे आपका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा था, आपने 40 पे किया, 40 पे उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई, ठीक है ना। लेट से आप जैसे आप 50 पे गए, 50 पे उसकी एक्यूरेसी क्या हुई, कम हो गई, क्योंकि आपने ट्रेन पे देखा, टेस्ट पे देखा। इसका मतलब 40 पे अच्छा काम कर रहा है, 50 पे उसकी एक्यूरेसी कम होगी, इसका मतलब आपका जो के होगा मोरलेस 40 और 50 के बीच में कहीं लाई करेगा। देन फिर आपका ब्रैकेट क्या करोगे, 40 से 50 के बीच में ट्राई करोगे, फिर आप 45 पे ट्राई करोगे, 45 पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपका के है 40 से 45 के बीच में। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आपने ब्रैकेट को स्मॉल करते जाओ। When we say in terms of accuracy, is it going to be like when we are like we are making a model, as you mentioned that there's no model. This is no model, right? How will we come to know the accuracy? Is it by hit and trial itself? We like try 100 times and out of 100 times. नहीं, आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन निकालोगे ना। आप ट्रेनिंग पे एक डाटा रख दोगे, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग पे आपने देखा कि कौन सा के वैल्यू मेरा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। आपने उस के वैल्यू अपने ट्रेनिंग डाटा सेट पे सेट कर दी, ओके। उसका वैलिडेशन में देखोगे आप, जो अपने वैलिडेशन डाटा सेट, जो टेस्ट डाटा सेट आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर ईच एंड एवरी डाटा सेट के लिए कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम हो गई, इसका मतलब कि आपका वो ट्रेनिंग पे तो अच्छा काम कर रहा है, वैलिडेशन पे अच्छा काम नहीं कर रहा है, ओके। फिर आप ट्रेनिंग पे वापस जाओगे, फिर के को फिर से सेट करोगे, फिर वैलिडेशन में जाओगे। दिस हाउ इट वर्क्स। तो इस हिसाब से के को अपना चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से, ओके। ट्रेनिंग और टेस्ट पे बार-बार देख के उसको। सर जैसे हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं तो हम आर स्क्वायर वैल्यू देखते हैं, और हम जब लॉजिस्टिक्स देखते हैं तो हम उसमें प्रिसिशन रिकॉल देखते हैं। तो इसमें कौन सी वैल्यूज देख के हम मतलब पता करेंगे कि अब यहाँ ये अच्छा चल रहा है? दिस इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट? दिस इज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो जैसा लॉजिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेम। अगर क्लासिफिकेशन का यूज करें तो इससे सेम मेट्रिक यू हैव टू यूज। आपके बिजनेस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको प्रिसिशन देखना है कि रिकॉल देखना है, वही मेट्रिक आप चेक करोगे, ठीक है ना। वही सेम मेट्रिक आप चेक करोगे, आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई या ज्यादा हो गई, उसी हिसाब से अपना के आप सेट करोगे। अच्छा ठीक है, हाँ प्रिसिशन रिकॉल, ठीक है। जो भी आप देखना चाहते हो, बिजनेस प्रॉब्लम में डिपेंड करता है आपके, ओके। सेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा ना, सेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा आपका, क्योंकि फाइनली आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपको बताएगा कितने से सही प्रेडिक्ट किया, कितने से गलत। तो सेम, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा, वही सारे आपके मीट्रिक आएंगे, फिर आप डिसाइड करोगे कौन सा मीट्रिक आपको यूज करना है। उसका आप देखोगे तो आपका जो आपने के लिया वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे आपको प्रेडिक्शन दे रहा है, ओके। एवरीथिंग इज सेम, वही काम करेगा, ओके। ओके, नाउ जनरली जो आप के लेते हो, के भी यू जनरली टेक एज ए ऑड वैल्यू, और उसका बेसिक रीजन ये भी है कि लेट से आपने अगर इवन वैल्यू ले लिया और उसने लेट से आपने क्लास में आपके 5 और 5 आगे दोनों, ओके। सो उस केस में तो यू हैव ए प्रॉब्लम। सो जनरली आप जो के वैल्यू लेते हो आप हमेशा ऑड लेते हो जनरली, क्या एक वैल्यू आपकी हमेशा दूसरी वैल्यू से ज्यादा रहेगी, ओके। So k is taken always odd, okay, so that you have a probability that you have a clear cut winner, okay. So this is comparison misclassification error में। तो अगर आप कंपैरिजन देखो इसमें, दिस इज 2001 का पेपर है इनका, नियर्स नेवर के लिए, ओके। अगर आप टेस्ट एरर देखो, दिस इज योर टेस्ट एरर, ओके। दिस इज योर नेबाइस एरर, दिस इज योर ट्रेनिंग एरर, रेड वन, okay.
10-fold CV में आप देखोगे तो एरर आपकी कम होती चली जाती है. ओके, सो हियर यू कैन कंपेयर एक्चुअली योर डेटा. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स मोर लेस. आपका आप देखोगे तो बेस एरर के ऑलमोस्ट बेस एरर से आपकी इसकी एरर कम आती है. ओके, आपकी बेस की एरर है, दिस इज योर बेस एरर. और आप इस पे केएनएन लगाओगे तो टेस्ट की एरर आपकी हायर साइड पे आएगी. ओके, लेकिन अगर आप इसको बेसिकली आप उस पे टेस्ट में जाओगे तो आपकी एरर बेसिकली नेव ऐसे कम आती है. दिस कंपेरिजन ऑफ नेव बायस एंड द केएनएन. तो ये आप हमेशा जब भी आप कोई मॉडल लगाओगे तो आप केएनएन भी लगा के देख सकते हो. तो यू कैन कंपेयर एक्चुअली बोथ द मॉडल्स, एक्चुअली ऑल द मॉडल्स. आप लॉजिस्टिक भी लगा के देखो, आप उसको नेव बायस भी लगा के देखो, आप उसको केएनएन भी लगा के देखो, आप स्पेसियो में लगा के देखो. जो आपका बेटर काम कर रहा है फाइनली आप वो वाले एल्गोरिथम अपने लिए चूज कर लोगे. ओके, सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर ईच एंड एवरी. जब भी आप करोगे प्रोजेक्ट तो आपको सारी मॉडल यूज करके देखने पड़ेंगे. So when do we use KNN algorithms? When data set is small, first. On second, data is noise free, यानी कि आपके सिस्टम में आउटलायर्स नहीं है. ओके, बिकॉज आउटलायर्स may come because of the noise, कि आपके डाटा में नॉइज बहुत है, यानी कि बेसिकली आपका डाटा इज नॉट क्लीन, आपका डाटा आपका करप्ट है या कुछ भी है. जब भी आपके सिस्टम में नॉइज होगा या आउटलायर्स बहुत ज्यादा होंगे, उस केस में आपके KNN की परफॉर्मेंस उतनी आपकी डाउन होती चली जाएगी. ओके, so in that case you can not use the KNN because it is very sensitive to the outliers. Okay, आपका डाटा सेट बहुत बड़ा होगा तो उस केस में आपको बेसिकली आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए. फर्स्ट थिंग आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए. और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो भी आपका नया डाटा सेट आएगा उसको आपको ईच एंड एवरी जो आपके पास रिकॉर्ड है उस सारे रिकॉर्ड से आपको कंपेयर करना होगा. तो अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि you have to compare new record with the each and every existing records. So you have high time complexity for the bigger records. You have the high time complexity for the space complexity for the bigger data set. Okay. Yeah, Data set. Rajay, sorry, I was disconnected for 5 minutes and could not connect back. So can you just roll back for 2-3 minutes? I was saying कि KNN जो आप K लेते हो कि एक तो आप ऑड वैल्यू लोगे. ओके, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट विनर. अगर आप इवन वैल्यू ले लेते हो K की तो हो सकता है. No, Ajay, not only this sentence. Actually, I missed it for last 5 minutes. I got disconnected. Last 5 minutes. 5 minutes, or you can say 2-3 minutes, because I was trying to connect and it wasn't connecting back. So Yeah. this slide you have seen, right? So Right. we have seen कि अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू लोगे तो बेसिकली हमेशा जो भी आपकी बड़ी क्लास मेजॉरिटी क्लास होगी हमेशा उसको प्रेडिक्ट कर देगा. ओके, दैट वी हैव सीन. अगर स्मॉल वैल्यूज लोगे तो दैट विल बी वेरी मच अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स. सो बहुत ही हाईली वेरिएबल उसकी वैल्यू रहेगी. ठीक है ना, दिस इज हाईली वेरिएबल. ओके, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय 1 or 2 neighbors or 3 neighbors actually. So it is very high variable. Highly variable prediction. लार्ज वैल्यू लोगे तो मेजॉरिटी क्लास को प्रेडिक्ट करेगा. तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, व्हाट इज द राइट वैल्यू ऑफ K? So there is no right value of K, so that you have to find out with the hit and trial method. Okay, you have to go for the training, then you have go for the testing, then you see कि कौन सी K की वैल्यू आपके लिए बेटर काम कर रही है, किस K वैल्यू के लिए आपका मॉडल जनरलाइज मॉडल बनना है, इसमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए सेम एरर आ रही है, सेम आपका. सो वो उस K वैल्यू का फाइनल कर दोगे. ओके, दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड अगेन द आप K की वैल्यू जनरली आप K की वैल्यू आप ऑड वैल्यू लेते हो क्योंकि अगर लेट्स आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो दैट यू हैव अ क्लियर कट विनर. लेट्स से यू हैव K इक्वल टू 10 आपने लिया और दोनों क्लासेस लेट्स से उसमें आपकी 5 और 5 आ गई तो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज टेक द K एज अ ऑड वैल्यू सो दैट लेट्स से 1 is 6 और 1 is 5 तो दैट 6 को आप प्रेडिक्ट कर पाओ. अदरवाइज यू हैव डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन द प्रेडिक्शन. ओके, फिर हम देख रहे थे कि दिस इज चार्ट फॉर द कंपैरिजन ऑफ नेव बायस और द KNN. ओके, ये सिप्सानी फैडमैन का 2001 का पेपर, इसमें उन्होंने बेसिकली आपका नेव बायस को KNN को कंपेयर किया हुआ है. तो KNN इज गिविंग द बेटर रिजल्ट देन द नेव बायस. ओके, आप देखोगे तो एरर उसकी बेसिकली कम है. दैट यू कैन आल्सो कंपेयर इन योर डेटा सेट. जब आप मॉडल पे काम करोगे तो यू कैन आल्सो कंपेयर नेव बायस एंड द KNN. ओके, सो व्हेन टू यूज KNN? So KNN is used when data set is small, okay, because you need a lot of memory to load the data. First thing, so your space complexity is on the higher side. Second, when you have, because you are comparing the new data or the new record that is coming to each and every record that is available to you, okay, to find the neighbors. So in that case, if you have the bigger data set, then comparison on the higher side, so your time complexity will increase, so your system will slow, and everything you are
and everything you are doing it in the runtime. Let's say you have the bigger data set, and now in the runtime you are comparing each and every data, and you are finally find the nearest neighbor. Then you are doing the prediction, so it becomes very slow if you have very bigger data set. Okay, so and this is the so your data set should be small, then you can use the KNN. Okay, and second thing is your data should be noise free, and there should be very less outliers. If there is an outliers, then your KNN is going to perform very bad, because it is very sensitive to the outliers. Okay, so these are the two limitations for the KNN algorithm, and if both the limitations are satisfied, then you can use and go ahead use the KNN algorithm. Okay, so now we come to the when I am saying we are going to find out the nearest neighbor on the basis of the feature similarity. So what are the distance function, or what are the similarity function that we can use? If this are the similar neighbors, they are the similars record, or they are the neighbors, or they are the dissimilar records, or they are not the neighbors. So we have distance functions, or you can say similarity functions. So one of the very basic is the Euclidean distance. Okay, so let's say I have 2 dimension only. Let's say this is my first dimension, this is dimension 1, and let's say this is my dimension 2. Okay, and I have plotted the data 2 records, P1 and the P2. Okay, and then let's say I want to find out the distance. Okay, so this is a distance function, the distance between the 2 records. So this is just a Pythagoras theorem. Okay, so P1 is 104, P2 is 501, so Euclidean distance will equal to 5. Okay, so let's say this is third record, let's say this is P3, and let's say this is not say here, isko yahan le lete hain. Okay, and let's say this is 403. Okay, so I will again find the distance. Okay, let's say this is a record 403. Okay, that is coming for the prediction. So I will compare 403 with the P1. I will compare 403 with the P2. I will find the distance using this Euclidean distance formula, and which were having the bigger distance, sorry, less distance, that is closer to this. Okay, and that is I'm going for the prediction. Let's say I have 10 points, बहुत सारे points, millions of the points मेरे पास. So I will, and this is my new data that is coming for the prediction. So I will using this distance function, and I will going to find out the distance, okay, of this new data for as compared to all the records. Okay, so I will have the n, let's say I have n records, so I will be having n distance. Let's say k equal to 10. So on the basis of what is the minimum 10 distances I will find out on the basis of k. So I will have k nearest neighbor. Okay, then I will see what is the majority class, and I will predict it. Okay, so Euclidean distance is one of the similarity function, or the distance function we can use for the similarity, feature similarity. Okay, to find out the neighbors. This is one of the basic, and बहुत ज़्यादा industry में use होता है. It is used a lot of applications. Okay. Second is okay, इसका इसी का example है जो हम अभी देख रहे थे. Same. लेट्स सी मेरे पास D2, D3 और ऑल मुझे पास D1 दिया हुआ है, कोई नया डाटा पॉइंट आता है तो मैं क्या करूंगा, इससे डिस्टेंस निकालूंगा, इससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा, और सबकी डिस्टेंस मैंने निकाल ली है, और जो भी मेरा k होगा उतना मिनिमम डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर लूंगा. इट विल k नियरेस्ट नेबर, देन आई विल प्रेडिक्ट इट. सेम थिंग, इसमें कुछ नया नहीं है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ओके, let's say this is a data record that are actually given to me. Okay, this is the data records, these are actually given to me. मुझे स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, और उसमें मुझे क्लास बता रहा है कि स्टूडेंट्स इज अंडर वेट और नॉर्मल और ओवर वेट, व्हाटएवर. ओके, so this is the new data that has come to me, that is 57 or 170. Okay, मुझे इसको प्रेडिक्ट करना है कि बेसिकली इसकी क्लास क्या है, whether it is अंडर वेट और नॉर्मल और ओवर वेट. So what I will do, I will find out the distance, okay, of this data point
from each and every data records. So I will find out distance function. तो ये आपका distance आ गया सबकी, जो मैंने कौन से फार्मूले से निकाल ली है, पीछे जो आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला देखा था उससे मैंने सबके ये निकाल लिया. Let's say k is equal to 3. So what is the minimum distance k? What is the minimum? It is 1.4, 3 and 2. So these are going to help me for the prediction. And what is the majority class? Normal. So I'm going to predict normal. Okay, let's say k equal to मैंने 5 लिया होता तो उसमें कौन कौन सा जाते, 4.1 में इंक्लूड हो जाता और आपका 6.7 इंक्लूड हो जाता. ओके, तो स्टिल इसमें आपकी 3 नॉर्मल्स हैं, 2 अंडरवेट है, स्टिल इट विल बिहेव एट इट विल प्रेडिक्ट एज ए नॉर्मल. लेट्स से k इक्वल टू मैंने 7 लिया होता तो उस केस में 2 और ऐड हो गए मेरे पास, 7.6 पे जाता और 8.2 पे जाता. तो स्टिल नॉर्मल इज द मेजॉरिटी क्लास, आई विल प्रेडिक्ट एज ए नॉर्मल. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर इसमें अगर अंडरवेट आता तो उसके तो सिर्फ 2 ही डेटा पॉइंट्स है, मोस्टली डेटा तो स्क्यूड ही है टुवर्ड्स नॉर्मल. तो अंडरवेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? मैं मतलब वैसे सोच रही हूँ अगर अंडरवेट अगर हम करते हैं तो और 5 ले लेते हैं तो फिर वो नॉर्मल प्रेडिक्ट हो जाएगा हमेशा. अगर मैं अंडरवेट कोई डेटा दूं, मतलब मैंने कोई अंडरवेट का रेशियो दे दिया और मैंने k5 ले लिया, तो मेरे को पता है कि मेरे अंडरवेट 2 ही आएंगे और बाकी जो 3 आएंगे वो हमेशा नॉर्मल में से आएंगे, वो नॉर्मल प्रेडिक्ट हो जाएगा. नहीं बात, ये तो डाटा मतलब डेटा आपका बहुत कम है, इतने 7-8 रोज तो आपके नहीं आएंगे ना. 7-8 रोज पे काम करोगे तो आपका प्रेडिक्शन में से खराब ही जाएगा ना. आपके पास तो जाने से बात है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, है ना. तो उसके वो तो ठीक है, बट अगर हम देखें कि बहुत सारा डेटा भी लिया और उसमें अंडरवेट बहुत ही कम है, वो स्क्यूड है, तो जैसे अगर हम इस छोटे डेटा पे एनालाइज करें और मैं k की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई अंडरवेट डेटा दूं और k की वैल्यू 5 दूं, तो हमेशा 3 नॉर्मल डेटा पिक करेगा क्योंकि अंडरवेट है ही तो उसके अलावा तो उसको नॉर्मली पिक करना पड़ेगा. हाँ, वही हम लोग वही कह रहे थे कि जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो हमेशा मेजॉरिटी क्लास हमेशा प्रेडिक्ट होती चली जाएगी. ओके, तो k की वैल्यू हमेशा आपको वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसके लिए बेसिकली आप सही काम कर रहा हो, ठीक है ना. तो वी हैव टू फाइंड आउट सच ए k जिसकी बेसिकली वो आपको अंडरवेट कोई ऐसा नहीं करे कि हमेशा मेजॉरिटी क्लास को प्रेडिक्ट करता रहे, ठीक है ना. अगर आप k सर जो हम वहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, नॉइज फ्री, ये वो लेबल्ड, तो उसमें ये भी होना चाहिए डेटा शुड नॉट बी स्क्यूड मच. नहीं, अगर आपके स्क्यूड है तो उस केस में बताना, अगर आपका डेटा अगर स्क्यूड है तो उस केस में आप k अगर बड़ा लोगे तो हमेशा मेजॉरिटी क्लास को बिलोंग करेगा वो, ठीक है. तो उस केस में आपको k सेलेक्ट करना पड़ेगा. आपका k आपको छोटा लेना है, मिड लेवल का k लेना है, तो k आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल के थ्रू कि कौन से k पे आपके बेसिकली आपका रिजल्ट आपके ज्यादा अच्छा है. अगर यहीं पे हम k5 ले लेते तो गलत प्रेडिक्ट करता हूँ. हाँ, k5 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डेटा हमारा 57 170 आ रहा है तो सब सोचता है नॉर्मल को बिलोंग करता हो. अगर हम इसके हिसाब से लेंगे, हम ले लेगा 52. अगर मैं डेटा अंडरवेट का देती, मतलब अगर मैं डेटा ही कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देती कि उसका डिस्टेंस, तो अंडरवेट कर देता. लेट्स से मैं यहाँ पे अगर मैं डेटा हिसाब से लूं, लेट्स से मैं 52 और लेट्स से 170 लूं, 52 और 172. ओके, तो उस केस में अगर मैं k इक्वल टू हो सकता है 2 लूंगा तो हो सकता है वो केवल अंडरवेट को प्रेडिक्ट कर देगा क्योंकि मोरलेस वही कॉम्बिनेशन है 51 67 और 56 174 के आसपास. ओके, सो इट बिलोंग्स टू आपका आउटपुट, आपका जो डेटा वो किस टाइप से आ रहा है. ओके, उस बेसिस पे सिमिलरिटी निकालेगा वो. ओके, सो k आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस मेजर आपके और बहुत सारे डिस्टेंस मेजर्स हैं. ओके, that was a very common that generally being used in the industry, that was Euclidean distance, और most of the times वो बहुत अच्छा काम कर भी जाता है. Okay, so अगर आपके न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, तो कंपैरिजन के लिए आप यूज करोगे यूक्लिडियन, दैट्स इट, और बाकी दो हम बाकी देखेंगे. ओके, सो इट ट्रीट्स ऑल द डायमेंशन इक्वली. ओके, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके नहीं चलते, उसके लिए सारे फीचर्स के लिए सेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे तो डिस्टेंस फार्मूला सबके लिए सेम तरीके से यूज करता है. दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. ओके, सो इट डजंट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फीचर इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज लेस इंपॉर्टेंट, तो सबको सेम तरीके से ट्रीट करता है. ओके, ओके, और सेंसिटिव टू एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन सिंगल एट्रीब्यूट. अगर किसी एक एट्रीब्यूट में का बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका आ गया था और बाकी समय आपका बहुत डिफरेंस कम भी है तो उसका वेटेज उससे ज्यादा हो जाता है क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो हो सकता है किसी एक डायमेंशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा हो और बाकी सब डिफरेंस में हो सकता है सिमिलर हो, तो किसी एक डिफरेंस की वजह से क्या होगा, उनको डिसिमिलर बता देगा क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है. सो यूक्लिडियन की मतलब प्रॉस एंड कॉन्स है, बहुत सिंपल है, लेकिन यह है कि सबको डायमेंशन को इक्वली ट्रीट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट में अगर आपके एक्सट्रीम डिफरेंसेस आ गए
so it will treat as a non neighbors. बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यूक्लिडियन आप कभी भी जनरल में बहुत अच्छा काम कर जाता है. ओके अगर आपके न्यूमेरिकल है तो आपको यूक्लिडियन यूज करना है. अगर आपका कैटेगोरिकल है देन यू गो फॉर द हैविंग. तो हैविंग डिस्टेंस में क्या करता है? हैविंग डिस्टेंस सिर्फ ये करता है कि दोनों के दो कैटेगरी इक्वल है या नहीं है. दैट्स इज फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज सेकंड रिकॉर्ड. ओके और एक कोई कॉलम है, लेट्स से कॉलम आपको बताता है, लेट्स से कार का कॉलम, ये कार का कलर क्या है, लेट्स से यहाँ पे आपका रेड है और यहाँ पर ये ब्लू है. तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करेगा? कैटेगोरिकल को. न्यूमेरिकल में तो उसने इक्विवेलेंट डिस्टेंस लगा दिया, कैटेगोरिकल कैसे कंपेयर करेगा? तो कैटेगोरिकल सिर्फ ये देखता है कि ये वैल्यूज बराबर है कि नहीं है, आर और ब्लू. यहाँ पे आर है और ब्लू है, तो अगर आर और आर सेम होता है तो वैल्यूज की 1 आ जाती है. आर और ब्लू है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा सिम कंपैरिजन में. ओके दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कंपेयर द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. उनकी डिस्टेंस ऐसे निकालता है. न्यूमेरिकल की आपकी यूक्लिडियन के थ्रू निकालेगा और अगर आपकी कैटेगोरिकल है तो उसकी हैमिंग के थ्रू निकालेगा. If they are similar, the output is 1. If they are dissimilar, the output is 0. Okay. Fine. So good. So एक और डिस्टेंस आपकी आती है, वो आता है कि मैनहट्टन डिस्टेंस. मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे होती है आपके? दिस इज मैनहट्टन डिस्टेंस. ये आपका लेट्स से दिस इज द डेटा गिवन टू यू. लेट्स मुझे इस ब्लॉक से मुझे इस ब्लॉक तक जाना है. सो दिस इज योर इक्विवेलेंट डिस्टेंस. दिस इज आवर दिस डिस्टेंस और ये आपने इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल ली. मैनहट्टन क्या होती है? मैनहट्टन आपकी बेसिकली ब्लॉक डिस्टेंस होती है. इसको टैक्सी डिस्टेंस भी बोलते हैं कि टैक्सी किसी से जाएगी. ठीक है ना. तो आपकी ब्लॉक डिस्टेंस होती है बेसिकली आपका ये कितने ब्लॉक आपको बेसिकली क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए. तो दैट इज योर बेसिकली block distance or your that is called your Manhattan distance. Okay, so this is your Manhattan distance. So Manhattan distance is the formula is very simple one. This is your Manhattan distance. Where is the formula? पीक अभी नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम ये आपका मैनहट्टन डिस्टेंस होता है जिसमें ब्लॉक निकालते हो कितने ब्लॉक डिस्टेंस दूर है वो, और आप सीधे डायरेक्ट निकालोगे. दिस इज योर वो कहते हैं उसको यूक्लिडियन. अगर आप इक्वल टू 0 कर दोगे, सॉरी अब हम आते हैं कॉमन फार्मूला पे. दिस इज योर कॉमन फार्मूला, दिस वन, जिसको हम बोलते हैं मिनोकॉक्सी डिस्टेंस. ये कॉमन फार्मूला डिस्टेंस निकालने का. ओके अगर इसमें p इक्वल टू आप रख दोगे 0, ओके तो इट बिकम द हैविंग डिस्टेंस. p इक्वल टू आप 1 रख दोगे, इट बिकम्स द मैनहट्टन डिस्टेंस. ओके केवल ब्लॉक डिस्टेंस देखेगा, यानी क्या करेगा? x का डिफरेंस देखेगा. यहाँ पर x कितना, यहाँ पर x कितना, उसका डिफरेंस, और y का डिफरेंस कितना है. तो दैट इज योर मैनहट्टन डिस्टेंस. अगर आप इसको 2 रख दोगे देन बिकम द इक्विवेलेंट डिस्टेंस. ओके अगर p को इन्फिनिटी रख दोगे इट बिकम द शेव डिस्टेंस, जो आपकी चेस्ट बोर्ड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं. दिस इज चेस्ट बोर्ड डिस्टेंस. क्यों? चेस्ट बोर्ड से कितना दूर है, क्योंकि चेस्ट बोर्ड में आप कितना चल सकते हो. आप लेट्स से यू आर ए किंग. ओके और आप किंग को लेट्स से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आना है, लेट्स से इस पोजीशन पे. ओके तो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? जब केवल आप एक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो. तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 1 2 3. ओके 1 2 3. तो दैट इज कॉल्ड योर शेव डिस्टेंस. Okay, so this is a normal formula. Okay, मिनोकॉक्सी डिस्टेंस. तो इसमें आप p की पावर चेंज कर सकते हो. p की पावर चेंज करने के बाद आपको अगर 2 रखोगे यूक्लिडियन बन जाएगा, 1 रखोगे मैनहट्टन बन जाएगा, 0 रखोगे हैमिंग बन जाएगा, और इन्फिनिटी रखोगे शेव डिस्टेंस बन जाएगा. ओके सो दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला. अब नाउ वी कम टू की कौन सा डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना है. देखो देयर आर लॉट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, 4-5 तो आपने यहीं पर देख लिए. ओके सो व्हेन विच टू, कौन सा आपको यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना. लेट्स कंपेयर फर्स्ट यूक्लिडियन वर्सेस मैनहट्टन. ओके फर्स्ट मैनहट्टन डिस्टेंस इज L1 फॉर्म. ओके L1 बिकॉज इसमें आपका क्या है, सिर्फ एक पावर है, राइट. L2 फॉर्म इज यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर द हाई डायमेंशनल डेटा. ओके अगर आपकी हाई डायमेंशनल डेटा है देन यू जनरली गो फॉर द मैनहट्टन डिस्टेंस. मैनहट्टन डिस्टेंस may be preferable to Euclidean distance for the case of high dimensional data. These are the empirical evidences जो experiments निकल के आए हैं. Okay. Okay. So
Computing the root sum of the square, RMC respond to the Euclidean form. It is the notion of distance finally it is called L2 form. ठीक है, मैं ये आपका L1 form हो गया, अभी हम देख चुके हैं, ठीक है. More certainly L0 just give the number of non-zeros maximum. अगर आप L के नॉर्म आपकी बेसिकली आपकी L1 फॉर्म हो गई, L2 फॉर्म हो गया, जैसे जैसे आप उसकी डिग्री बढ़ाते चले जाओगे उतनी आपकी नॉर्म की डिस्टेंस बढ़ जाएगी. जैसे L के नॉर्म डिस्टेंस हो जाएगी. अगर आप L1 L equal to 1 रखा, then जो मैनहट्टन डिस्टेंस L equal to अपने सॉरी P equal to 2 रखा, then it become your यूक्लिडियन डिस्टेंस, और P equal to आप बढ़ाते चले जाओगे तो उतनी नॉर्म की आपकी बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन बनता चला जाएगा. ओके, सो K norm distance with the fractional value of K for higher dimensional data in order to improve the result of distance based algorithm like clustering. The higher the norm indexes, the more it focuses on the large values and neglect the small values. This is why RMS is more sensitive to outliers than ME, but when outliers are exponentially rare, the RMS performs very well and generally it is preferred. So this is the same thing कि basically अगर आप P की वैल्यू आप छोटी करते चले जाओगे, ठीक है ना. ओके, आप ये समझ के चलो कि अगर मैं आपका RMS क्या था, आपका RMS बेसिकली आपका सेकंड फॉर्म है, L2 फॉर्म है. ओके, L2 फॉर्म बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं आउटलायर्स के लिए. व्हेन वी हैव द आउटलायर्स वी जनरली गो फॉर द L1 जो हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था. सो व्हेन यू हैव द नॉर्म इंडेक्स, जैसे जैसे आप नॉर्म इंडेक्स हाई करते चले जाओगे, यानी P की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओगे, सो यू हैव द हाई इंडेक्स डिस्टेंसेस, सो दे आर मोर सेंसिटिव टू द आउटलायर्स. अगर आपके सिस्टम में ज्यादा आउटलायर्स हैं, if you have outliers higher side, then you go for the lower side of the norm distances. Let's say तो उस केस में आपका मैनहट्टन डिस्टेंस आपका ज्यादा अच्छा काम करेगी. Okay, so you have two best practices. अगर आपका high dimensional data, then you always go for the L1 form. अगर आपके सिस्टम में outliers हैं, then always you go for the L1 form, क्योंकि उस केस में आपका वो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रही है. अगर आपके सिस्टम में outliers नहीं है, then you can go for the L2 or the higher side of the distance functions. So these are that's empiric evidences. ठीक है ना, हो सकता है आपके डेटा सेट पे काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना. सो लेकिन एटलीस्ट इट विल गिव यू सम बेसिक आइडिया कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस से स्टार्ट करना है कि आपको बेसिकली मैनहट्टन डिस्टेंस से डिस्टेंस करना है, कि आपको कौन सी डिस्टेंस आप चूज कर सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग में यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा काम कर जाती है, ठीक है ना. क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल भी नहीं है कि कौन सी डिस्टेंस बेटर है और कौन सी डिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी डिस्टेंसेस हैं. सो फाइंड आउट करना कि कौन सी डिस्टेंस आपके लिए ज्यादा बेटर काम करेगी, इट इज अ टीडियस टास्क. सो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, यूक्लिडियन यूज कर लेते हैं और यूक्लिडियन ही यूज करते हैं सब लोग. यूक्लिडियन बहुत अच्छा काम कर जाता है. सो लेकिन यू कैन ट्राई, आप L1 L2 L3 L4 डिफरेंट कम से कम 3 या 4 तरीके की तो आप चेक करके देख सकते हो, और जो जिसपे आपका बेटर रिजल्ट आ रहा है जिस के कॉम्बिनेशन के साथ, उसको फाइनली उस डिस्टेंस को और उस के को फाइनली यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कौन सी आप यूज करोगे. सबसे पहले आप यूक्लिडियन यूज करके देखो, मैनहट्टन यूज करके देखो, फिर आप दूसरी यूज करके देखो L1 L2 L3 L4 L5 तक, जिसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलने हैं उसको आप यूज कर लो. ओके, इसके लिए अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है डिस्टेंस के लिए तो वी हैव द फ्यू रिसर्च पेपर जहां बहुत सारी इनका कंपैरिजन दिया हुआ है. ओके, सो यू कैन गो फॉर द कंपैरिजन एज वेल. Not here, not here, not here, not here, not here. Where it is? So I will give you some research paper as well, जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो कंपैरिजन केनन में. So they are the few research papers. डिस्टेंस फंक्शन कंपैरिजन, डिस्टेंस फंक्शन कंपैरिजन. तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट स्टडीज की हैं और दे हैव कम टू सम कंक्लूजन कि कहाँ पर आप कौन सा यूज कर सकते हो. ओके, okay, so this is also come, this is just a summary from these research papers. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो रिसर्च पेपर जाके पढ़ सकते हो, so that you have a fair idea कहाँ पर आप किसको यूज कर सकते हो. ओके, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एटलीस्ट कम से कम L1 L2 L3 L4 L5 तक यूज करके देख लो. ओके, सो यू विल फाइंड आउट. उसको ऊपर जाओगे फिर इन्फिनिटी आप कितना भी यूज कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, आप इतना कॉम्बिनेशन ट्राई भी नहीं कर सकते. लेकिन आप L1 L2 L3 L5 तक तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. Okay. Okay. So that is why machine learning and the data science projects are very iterative, because most of the hyperparameters actually the kind of that, because you will not able to find out what is the right combination. So it is a lot of iterations are there to find the right value for the hyperparameters, or sometimes it takes a lot of time.
to find out the right parameters. Okay, the another one is your weighted Euclidean distance. Okay, sorry, if your all attributes are the same scale, perfect, fine, range and values to be similar. ओके, ऑल फीचर्स सेम। अगर आपकी ये सारी चीजें आपकी सेफ कॉमन हो रही हैं तो देन आप सारे वेट्स को इक्वल वेट दे सकते हो। आपके सारे सेम स्केल पे हैं, ठीक है, आपने उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है और आपके सारे फीचर्स सेम इंपॉर्टेंस के हैं, तो आप नॉर्मल यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपका बेसिक डाटा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और सबकी इंपॉर्टेंस आपकी सेम नहीं है, कुछ फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से आपको पता है, ओके, सो देन यू शुड गो फॉर द लार्जर के first best practice and you should go for the weighted Euclidean function. ओके, तो वेटेड यूक्लिडियन फंक्शन क्या होता है? जो आपने फंक्शन किया था उस फंक्शन में बेसिकली आप क्या करते हैं, सबका वो जो डिस्टेंस निकाला था इक्वल निकाला था, a1 माइनस a1 सारी फीचर्स का डिस्टेंस, उसमें आप क्या करते हो, वेट दे देते हो कि कौन सी फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी सिमिलरिटी डिसमिलरिटी को उतने ज्यादा वो वेटेज दे देगा, तो आप वेटेज में इंक्लूड कर सकते हो, यू विल गेट द वेटेज। ओके, सो इन दैट केस जो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस फीचर की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब उसमें डिस्टेंस फंक्शन निकालोगे। तो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और लेट्स से उसमें डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है उस पर्टिकुलर फीचर्स के लिए, तो दे विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन नेबर्स। ओके, अगर वो सिमिलर आ रहा है, अगर वो सिमिलर आ रहा है, ओके, सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेबर्स। सो इफ यू हैव द डिफरेंट इंपॉर्टेंस फीचर्स देन यू गो फॉर द वेटेड यूक्लिडियन फंक्शन। ये वेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ये वेट अपने आप, दिस इज हाइपर पैरामीटर्स की किसको आपको कितना वेट देना है। लेट्स से आपकी जो नॉर्मल फीचर्स है सबको आपने कोई वेट नहीं दिया, नॉर्मल वेट चल रहा है। लेट्स से आपको पता है कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि लेट्स से हाउस प्राइसिंग एग्जांपल आपका एरिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको उस केस में आप इसको लेट्स से आप उसको 50 दे सकते हो और बाकी सबको अपने 5 2 3 उस हिसाब से आपने उसको दे दिया। तो ये रोल सबसे ज्यादा, ये वाला जो फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने में। ओके, पर सर ये जो WI है वो पूरे उसके बाहर लगा हुआ है ना, पूरे ब्रैकेट के बाहर, मतलब सबके लिए अलग अलग है। आई के साथ हर रिकॉर्ड के लिए अलग है ना? नहीं, हर रिकॉर्ड के लिए नहीं, हर फीचर के लिए अलग है। आई इज द फीचर्स, टोटल नंबर ऑफ फीचर्स, इज नॉट अ टोटल नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो अपने ये तो कंपैरिजन फंक्शन है ना लड़की, कंपैरिजन फंक्शन है जिसको आप ईच एंड एवरी डाटा रिकॉर्ड के साथ निकालोगे। वो जैसे मतलब 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं हम, तो एक अगर कोई नया पॉइंट आता है तो 3 डायमेंशन होगी उसकी, तो 3 के साथ में कंपैरिजन होगा। हाँ, यहाँ पर हम देखो सिर्फ दो कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम सिर्फ 2 रिकॉर्ड कंपेयर कर रहे हैं, रिकॉर्ड ए और रिकॉर्ड बी को कंपेयर करके उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर मुझे सी के साथ कंपेयर करना हो ए को, तो फिर मैं क्या निकालूंगा, डी, ए और सी निकालूंगा, ठीक है ना। और आई इज टोटल नंबर ऑफ फीचर्स, हर फीचर्स के लिए मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, so some features are more relevant and some features are less relevant. ओके, तो किसी में अगर डिफरेंस ज्यादा आता है तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा उसको मैं वेट ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। तो उसके आपको आप देखोगे तो इसके व्हेन वी विल यूज kn, तो उसमें आपको वेटेड, वी विल यूज द वेटेड, कि वेटेड को कैसे यूज कर सकते हैं। जब कोड देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे न्यूमेरिकल फीचर में आपने बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फंक्शन से। अगर कैटेगोरिकल फीचर आता है तो उसमें 0 और 1 लेते हैं। यस, तो उनके बीच की जो बाउंड्री बनेगी वो कैसे बनेगी, मतलब 0 और 1 से कैसे बनेगी? वो तो अगर देखो वो तो बेसिकली किसके हिसाब से बना रहा है, ओवरऑल डिस्टेंस निकालेगा ना। वो क्या करेगा, पहले न्यूमेरिकल भी निकालेगा, कैटेगोरिकल निकालेगा, फिर उन सबको सम कर देगा, सम के बाद फिर आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी, उसके हिसाब से बाउंड्री बनाएगा। हाँ, मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था शुरुआत में, कैट और डॉग वाला, उसमें कैसे होगा, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे कि आपने डिस्टेंस ए और बी निकाल लिया, आपने वैसे लिए 2 वेरिएबल थे, इसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल थे, कुछ कैटेगोरिकल थे। लेट्स फॉर एग्जांपल, पहले आपने न्यूमेरिकली क्या, कि न्यूमेरिकली आपने डिस्टेंस निकाल ली ये वाला फंक्शन यूज करके, ठीक है। फिर आपने कैटेगोरिकल की आपने हैविंग डिस्टेंस निकाल ली, इन दोनों को सम कर दिया, उस सम के बाद फिर आपकी फाइनल डिस्टेंस आएगी 2 ए और बी के बीच में, उसके हिसाब से फिर आपकी डिस्टेंस, फिर आपके वो बाउंड्रीज बनेगी। ओके, ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी।
जो हमने सबसे पहले जब हमने उसकी क्लास की थी तो हमने कोसाइन ये फॉर्मूला देखा था, a डॉट b का फॉर्मूला आपका ये होता है, राइट, दिस इज a डॉट b, if two vectors are there, this is the formula for a dot b. So cos theta is called कि angle of between a और b का बीच का जो एंगल होता है वो आपका cos theta होता है. So this cos theta is called the cosine similarity. तो इसका बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस होता है कि आप इसको यूज करते हो. Let's say I just want to use the Kn classification for the Kn, let's say document classification. कि लेट्स से मेरे पास न्यूज के हैं, न्यूज जैसे कि आप गूगल पे देखोगे तो न्यूज का अलग अलग सेगमेंट से डिवाइड कर देता है. पॉलिटिकल न्यूज है कि बेसिकली साइंस की न्यूज है या जो भी अलग अलग न्यूज है उसमें डिवाइड कर देता है, तो डॉक्यूमेंट से डिवाइड कर देता है. सो इफ लेट्स से आई वांट टू यूज इट फॉर द डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और टेस्ट क्लासिफिकेशन और न्यूज क्लासिफिकेशन व्हाटएवर. सो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर हम उसमें फॉर एग्जांपल जब हम टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ईच एंड एवरी वर्ड हमारा एक फीचर बन जाता है. तो लेट्स में मेल में स्पैम और नॉन स्पैम को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं क्या निकाल लेता हूँ कि कौन से वर्ड फ्रीक्वेंटली नॉन स्पैम में आ रहे हैं, कौन से वर्ड फ्रीक्वेंटली स्पैम में आ रहे हैं, और उसके बाद मैं इसका स्कोर निकाल के उसे कंपेयर कर लेता हूँ. तो जिसमें स्पैम वाले वर्ड जिस अगर उसमें ज्यादा आ रहे हैं तो मैं उसको ट्रीट कर दूंगा स्पैम की तरह, अगर उसको कम आ रहे हैं तो उसको नॉन स्पैम की तरह ट्रीट कर दूंगा. नॉर्मल फीचर होता है जिसमें कोड देखेंगे बाद में. तो उसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि लेट्स से अगर दोनों मेरे डॉक्यूमेंट इक्वल साइज के हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डॉक्यूमेंट हैं, दोनों स्पोर्ट्स के हैं, ठीक है, दोनों लेट्स से दे आर बोथ बिलोंग टू द फुटबॉल. ओके, तो उस केस में क्योंकि फुटबॉल के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो फुटबॉल मैच में ज्यादा यूज होते होंगे, तो दोनों में इक्वली आ रहे होंगे, बोले दोनों का साइज भी दोनों का इक्वल है. तो उस केस में अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो डिस्टेंस मेरा बेसिकली फीचर सिमिलरिटी बेसिस पे निकालता है. तो ईच एंड एवरी वर्ड देखूंगे वो वर्ड इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है. ओके, सो उस तरह से मैं डिस्टेंस फंक्शन निकाल लूंगा. तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम विद मी. अगर वो डिस्टेंस फंक्शन ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब डिसिमिलर है, अगर सेम आ रहा है इसका मतलब सिमिलर है. ओके, अब प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि लेट से इस वाली टेक्निक में प्रॉब्लम क्या है, इस वाली टेक्निक में प्रॉब्लम है कि दोनों का लेट साइज डिफरेंट आ जाता है. लेट से मेरे पास एक रिकॉर्ड मेरे पास फुटबॉल का है, ठीक है, लेट से क्रिकेट का मान लो, दोनों एक रिकॉर्ड मेरे पास क्रिकेट का, एक मेरे पास पॉलिटिकल रिकॉर्ड है. जो मेरे पास जो क्रिकेट वाला जो रिकॉर्ड है लेट से वो केवल मेरे पास लेट से 100 रोज का है, लेट से, और लेट से 100 वर्ड्स हैं उसमें. तो मेरे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट से लेट से उसमें मेरे पास लेट से 10,000 वर्ड्स हैं. ओके, अब बेसिकली क्या होना चाहिए कि बेसिकली दोनों का साइज दोनों का बिल्कुल एक्चुअली डिफरेंट है. लेट्स से क्रिकेट के रिकॉर्ड में सारे आपके जो वर्ड्स आएंगे उस तरह से आएंगे, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट लेट्स से बीसीसीआई आएगा, बाकी सारे वर्ड्स इस तरह से आएंगे आपके, ठीक है, टेट्स बैट्स में व्हाटएवर. लेट्स जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स से उसी दिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में किया होगा कि लेट्स से उस दिन प्रेसिडेंट ने सचिन तेंदुलकर को कोई अवार्ड दे दिया. सो उस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो उसमें सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट और वो सारे वर्ड्स उस दिन उसमें आ जाएंगे दोनों. लेकिन बाकी सारे वर्ड्स मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मेरे पास, इस डॉक्यूमेंट स्किल 50 वर्ड्स हैं, उसमें पास 10,000 वर्ड्स हैं. अगर मैं वर्ड टू वर्ड सिमिलरिटी निकालने के लिए जाऊंगा तो जो मेरे सारे वर्ड्स इसमें हैं ऑलमोस्ट वो सारे वर्ड मुझे बेसिकली सेकंड डॉक्यूमेंट में मुझे मिल जाएंगे. तो उस केस में क्योंकि वो दोनों क्या कहते हैं, दोनों को सिमिलर डॉक्यूमेंट में ट्रीट कर देगा. इट विल कंसीडर बोथ द डॉक्यूमेंट एज ए स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है. जो स्मॉल में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो अपने बड़े वाले में भी आ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी वर्ड जो बड़े वाले में कंपेयर हो ही नहीं रहे. तो उस केस में क्या होगा कि अगर साइज आपका डिफरेंट है तो उस केस में आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस या बाकी का डिस्टेंस आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है. तो उस केस में वी गो फॉर द कोसाइन सिमिलरिटी. वी विल नॉट गो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ड्स कि वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं या उनका डिस्टेंस हम लोग उस तरह से नहीं लेंगे. तो वी विल नॉट गो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ड्स, वी विल गो फॉर द कि हाउ द बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर. तो उस केस में हम लोग वी विल गो फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओरिएंटेशन, नॉट फॉर द मैग्नीट्यूड. तो लेट्स से ये दो मेरे पॉइंट्स हैं. अगर इनके बीच में अगर सिमिलरिटी निकालता नॉर्मल तरीके से तो कैसे हो जाता है, इक्विडियन, ये डिस्टेंस होती. अब मैं क्या निकालता हूं, आई विल गो फॉर दिस एंगल कि बेसिकली दे आर मोर और लेस सेम ओरिएंटेशन उनका है या नहीं है. अगर उनका डिफरेंट ओरिएंटेशन है दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट वन. ओके, अगर उनके बीच का एंगल कम है, थीटा इज लेस, तो दे विल बी मोर और लेस ट्रीटेड एज सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अगर उनका थीटा ज्यादा आता है दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो जहां भी आपका बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स के साइज में डिफरेंस होगा तो देन यू हैव टू गो फॉर द कोसाइन सिमिलरिटी, बिकॉज मैग्नीट्यूड मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों में डाटा का डिफरेंसेस है. ओके, एक में वर्ड ज्यादा है, एक में वर्ड कम है. उस केस में आई कैन नॉट कंपेयर 1 to 1 with the word numbering or the Euclidean distance. I have to go for the cosine similarity. तो उस केस हम कोसाइन सिमिलरिटी यूज करते हैं.
ओके, वी विल सी कोड ऑफ दिस कि कैसे कोसाइन सिमिलरिटी हम लोग यूज करते हैं. देन वी हैव टेस्ट क्लासिफिकेशन. ओके, बट दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू टेस्ट क्लासिफिकेशन कोसाइन सिमिलरिटी. जहां हम मैग्नीट्यूड नहीं देखते हैं, वी विल गो फॉर द ओरिएंटेशन. ओके, फिर आपका बहुत सारे आपके यूज कैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिमिलरिटी आप यूज करोगे. जैसे कि आप टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, आपको टेक्स्ट क्लासिफाई करना है कि बेसिकली आपको ये आपका स्पोर्ट्स का है या आपका पॉलिटिक्स का है, तो फिर आप कोसाइन सिमिलरिटी यूज करोगे क्योंकि उसमें बेसिक साइज में डिफरेंस है. लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को रीड किया, नंबर ऑफ रीड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो उस केस में मेरे जो फीचर्स बने वो डिफरेंट होंगे. उसमें फीचर्स मेरे वर्ड्स नहीं है, उसमें सिर्फ फीचर्स क्या होगा, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट के साथ एक नंबर काउंट आएगा कितने लोगों ने इसको पढ़ा है. ओके, राइट, उसके साथ में उसको क्लासिफाई करूंगा. तो उस केस में फिर बेसिकली क्या होगा, मेरा जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा, मैं बेसिकली उसको कोसाइन सिमिलरिटी ना देख के मैं उसको देख लूं कितने लोगों ने उसको कितनी बार पढ़ा है, कि कितना पॉपुलर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है. तो उस केस में फिर नंबर ऑफ रीड्स आएंगे, किस डॉक्यूमेंट को किसने कितनी बार पढ़ा है. देन आई विल फाइंड आउट कि ये पॉपुलर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, इसका प्राइस क्या होना चाहिए. तो उस केस में देन आई कैन डायरेक्टली गो फॉर द यूक्लिडियन डिस्टेंस. तो आई हैव टू फाइंड आउट कि बेसिकली बिजनेस का यूज केस क्या है, और यूज केस के साथ आई विल फाइंड आउट मुझे कौन सी सिमिलरिटी यूज करनी है. आई कैन गो फॉर द कोसाइन सिमिलरिटी और आई कैन गो फॉर द यूक्लिडियन डिस्टेंस. ओके, सो जरूरी नहीं कि टेस्ट क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपका हमेशा कोसाइन सिमिलरिटी यूज हो. मुझे केवल मुझे ये देखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा पढ़ा जाता है, कौन सा कम पढ़ा जाता है. तो उस केस में आई कैन गो फॉर द यूक्लिडियन डिस्टेंस एज वेल, क्योंकि नंबर ऑफ रीड्स मुझे केवल उसमें चेक करने हैं. ओके, सो देन विल सी एग्जांपल ऑफ इट. ओके, तो बेस्ट डाटा प्रैक्टिसेस फॉर द KNN. फर्स्ट, रीस्केल योर डेटा. ओके, ओके, फर्स्ट यू हैव टू रीस्केल योर डेटा. आप या तो उसको नॉर्मलाइज करो 0 से 1 के बीच में, या आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू कैन स्टैंडर्डाइज. ओके, बट यू हैव टू रीस्केल योर डेटा. एड्रेस द मिसिंग डेटा. ओके, अगर आपके डाटा में मिसिंग है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि फीचर की डिस्टेंस में आपकी 0 आती रहेगी. ओके, सो आपको एड्रेस द मिसिंग डेटा, मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. और थर्ड, आपके आउटलायर्स है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स. और थर्ड, लोअर डायमेंशनलिटी. अगर आपके डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपके कंपैरिजन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ये जब कंपैरिजन करता है तो ये फीचर टू फीचर कंपैरिजन करके डिस्टेंस निकालता है. तो अगर आपके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा होंगे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो यू हैव टू गो फॉर द लोअर डायमेंशनलिटी. तो आप कैसे करते हो, देन यू हैव टू गो फॉर द फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स. कि कौन से फीचर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन यूज द रैंडम फॉरेस्ट, यू कैन यूज फॉर द जो भी आपकी बाकी की टेक्निक्स थी, जिससे आपकी रैंडम फॉरेस्ट थी, और आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी आपने, फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स. अभी तो मैनुअली देखा है. मैनुअली देखा, मैनुअली देखा, टेक्निक्स नहीं पढ़ी है ये रैंडम फॉरेस्ट. ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेजोल्यूशन में फीचर इंजीनियरिंग में ये वाला पार्ट ना पढ़ाया हो. आई कैन नॉट नहीं बिलीव है इट, सर. आई कैन नॉट बिलीव इट. तुम लोगों ने ये वाली स्लाइड नहीं देखी है. आप एक बार स्लाइड दिखाओ सर, देख के बता सकते हैं. लेट मी शो यू द स्लाइड फर्स्ट. हो सकता है मैं वैसे पता और नाम से नहीं पता हो. नहीं, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट नहीं पढ़ा हमने. हाँ, रैंडम फॉरेस्ट तो नहीं पढ़ा रैंडम है. फॉरेस्ट नहीं पढ़ा है, दैट आई एम श्योर. लेकिन आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बेसिकली टेक्निक्स ना पढ़ी. फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स, आप ये वाली स्लाइड आपने 100% देखी होगी. इसमें आपके यूनिवेट फीचर सिलेक्शन है, जिसमें आप बेसिकली यूज कर रहे हो एप्लीकेशन और काई स्क्वायर. उसके बाद फिर आप लोग यूज कर रहे हो ट्री बेस्ड फीचर सिलेक्शन, एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर. नहीं, ये नहीं देखी सर, नहीं देखी. नहीं सर, देखी नहीं. रैंडम फॉरेस्ट नाम सुना है, लेकिन याद आ रहा है कहीं ना कहीं तो पढ़ा है. नहीं, वो तो ये पहले नहीं से पढ़, वो सुनते आ रहे सुनते हैं. आ रहे आपने हैं. काई स्क्वायर का नाम नहीं सुना, काई स्क्वायर टेक्निक? नहीं नहीं. नहीं. I don't think random forest हमने इस क्लास में कभी नहीं, सुना. रैंडम फॉरेस्ट नहीं किया होगा. रैंडम फॉरेस्ट आपके वक्त बाद में आएगा, बट रैंडम ट्री फॉरेस्ट बेस्ड फीचर सर सिलेक्शन ये भी नहीं वाली देगा. ये वाली जो हम ये फीचर सिलेक्शन वाली ये देखी ही अभी है. देखी हुई है? नहीं देखी. नहीं देखी है. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल कवर इट टुमारो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है ना. सो वेयर आर वी हियर. ओके, सो यू हैव टू गो फॉर द लोअर डायमेंशनलिटी. तो उसके लिए आप फीचर सिलेक्शन टेक्निक यूज कर सकते हो. अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होंगे. देन यू हैव द हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, सो दीज आर द बेस्ट टेक्निक. जब भी आपको KNN यूज करना तो ये तो आपको यूज करना ही करना है. यू हैव टू रीस्केल द डेटा, you have to identify the outliers, you have to identify the missing data, you have to handle them. Okay,
So pros of the k nearest neighbors, very simple algorithm, non parametric है तो कोई assumption नहीं होता है. So otherwise you have the assumption in the linear logistic regression, you have the assumption in the naive Bayes, but you don't have any assumption in the KNN algorithms. Okay, so without any assumption you can use it. Okay, you don't have to check your data. It can be both used for classification and regression as well. Okay, ट्रेनिंग स्टेप कुछ होता नहीं है. Okay, so cons क्या है? Computationally expensive है because it compare the prediction record with each and every record. Okay, fine. तो आपकी time complexity is na higher side. High memory requirement है तो आपकी space complexity भी आपकी higher side पे है. तो प्रोडिक्शन स्टेज वेरी कॉस्टली क्योंकि आपका सारा काम रन टाइम पे होता है, इसलिए आपका सारा काम आपका प्रोडिक्शन टाइम पे होगा तो आपका रन टाइम आपका स्लो हो जाता है. तो आपके प्रोडिक्शन बहुत फास्ट नहीं आएंगे, जैसे क्योंकि आप बाकी आप देखोगे कि नेव बायस में तो आपका ऑलरेडी मॉडल ट्रेन होता है, डेटा आएगा, आपको प्रोडिक्शन मिल जाएगा. यहाँ पे आपका सारा काम भी प्रोडिक्शन टाइम पे हो रहा है तो प्रोडिक्शन इज वेरी स्लो. ओके, सेंसिटिव टू आउटलायर्स और accuracy is impacted by the noise or the irrelevant data. So you have to clean your data and check the outliers or the any missing data. Okay, so why is KNN slow? It is slow because it compares all the prediction data with all the data that is available. Okay, so one thing, it is comparing the prediction data to each and every training data, first thing, and second reason, Depending upon the data size, it consumes a lot of memory, and then it retakes the data from the memories. and that is your space complexity. अगर हम time complexity की बात करें तो it depend on your data size because it is comparing comparing new data set, new data with the each and every data record. That is one thing. And second thing, what is slowing it down? Second thing is the number of features. If your features is high, then you are going to compare because आप जब distance function में आप सारी सारी features use करते हो, तो जितनी ज्यादा features होंगी उतने ज्यादा आपको comparison करने पड़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी calculations होंगी. So two factors actually makes the difference: the number of records and the number of features. Okay. So आपके कितने comparisons होंगे? अगर मेरे पास one रिकॉर्ड है उस और टोटल नया रिकॉर्ड आता है टेस्टिंग इंस्टेंस, आपको ट्रेनिंग सेटअप का ये है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी कंपैरिजंस? n comparisons, right? 1 to n. Okay, let's say this record is having how many features? Let's say m features. Each and every record is having m features. तो कितने कैलकुलेशन होंगे आपके? m into m into n. टोटल आपकी इतने कंपैरिजंस होंगे, इतनी कैलकुलेशन आपकी होंगी. So this factor and this factor, they are both the important factor. They are which are going to slow down your KNN. So अब KNN को fast कैसे कर सकते हो? Okay, so we'll see few techniques and few algorithms which make the KNN fast. Okay, on the cost of the performance, because आप इसको fast करोगे तो it will have an impact on the performance of the KNN. Okay, so we'll see it in another 2 minutes. Just take a break of 2 minutes. Okay, I will be back in 2 minutes.
Okay, I'm back. So let's see what we can do to make it faster. Okay, so how we can make it fast? So आपके ट्रेनिंग में तो ऑर्डर ऑफ डी कुछ नहीं है, आपके टेस्टिंग में ऑर्डर ऑफ एन डी। जब भी आप प्रेडिक्शन करने जाओगे तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ एन एन डी। एन इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एन डी इज नंबर ऑफ द फीचर्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग रिड्यूस द नंबर ऑफ डी। आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर सकते हो यूजिंग द फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स। ओके, इससे आपका क्या होगा कि आपके जो कंपेरिजन होंगे फीचर्स के वो कम होंगे। ओके, सो आपका कैनन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द वे। Second is reduce number of n. Don't compare with all the training examples. So how can we do that? अभी आप क्या कर रहे थे? We are comparing with each and every training examples. So can we find out a way so that we need not to compare with all the training examples, and we can have a subset so that we can compare with them and we can have more or less same working model. So we can have three different approaches for the same. One is KD tree, k-dimensional tree it is called. Second is inverted list, and third is locality sensitive hashing. Okay, let's see one of them. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट यू हैव एटलीस्ट आइडिया की चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम में देखोगे यू कैन यूज इट देम एज हाइपर पैरामीटर। ओके, कि आप KD ट्री यूज करना चाहते हो या LSH यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस एल्गोरिथम एज वेल। सो KD ट्री में वही क्या करता है, KD ट्री में ये आपके आपके पास जो डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, उस डेटा रिकॉर्ड्स को बेसिकली एक ट्री बनाता है। उस ट्री में आपके फीचर्स के हिसाब से उसको बाइफर्केट करता चला जाता है। ओके, लेट्स से दिस इज द only मेरे पास दो ही फीचर्स हैं, ये only two features. Okay, and I having how many data set records? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data records मेरे पास हैं। Okay, I have only two features. This is x1 and x2, x1 and let's say x2. Okay, so on the basis of मैं क्या करता हूँ, pick random dimension, find median of that, split the data and repeat. Okay, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने x1 लिया, एक रैंडम, x1 इज फर्स्ट वन, मैंने लिया उसका मीडियन। तो उसका मीडियन क्या आ गया मेरा, 1 2 4 3 5 6 8 7 9, मैंने मीडियन निकाला, मीडियन इज 6। ओके, 6 इज मीडियन, तो 6 से मैंने ब्रेक कर दिया इसको। तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वो सारे डाटा रिकॉर्ड्स मेरे इस तरफ आ जाएंगे, और x इज लेस देन इक्वल टू 6, वो सारे डाटा रिकॉर्ड मेरे इस तरफ आ जाएंगे। ओके, दिस इज माय फर्स्ट स्प्लिट। उसके बाद मैं स्प्लिट करता हूँ सेकंड स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन मेरी क्या है, ये वाली x2। मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ 9 3 1 7 एंड 4। इसका मीडियन मेरा क्या था, मीडियन इज 4। ओके, तो उसमें मैं स्प्लिट कर देता हूँ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये डाटा, x2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 4 ये। ऐसे यहाँ पर मीडियन निकालूंगा तो 8 2 8 9 6, तो मीडियन इज 8, तो उसकी वजह से मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, so this is how my complete data record is splitted. तो इस केस में अगर कोई मेरा नया डाटा पॉइंट आता है जिसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, तो इन दैट केस आई विल फॉलो दिस KD tree 7 4। तो 7 is greater than equal to 6, so it will come in this bucket. 4 is will come into this bucket. So now when I am going to compare 7 or 4, so I am not going to compare it with all the data records, I will compare it only with this bucket 7 2 9 6। okay, let's say इस bucket में let's मेरे पास 10,000 records आ गए हैं। so इन 10,000 records के साथ में compare करके let's say k equal to 10, तो मैं केवल इन डाटा रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करके 10 ईयर्स नेवर निकालूंगा, और जो से मेजॉरिटी क्लास होगी मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा। बट कंपैरिजन आपने कम कर दिया, लेकिन इस केस में आपकी केनन की परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो जाती है।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमने डिवाइड किया डाटा को। ये हमारे मेरे पास कंप्लीट डेटा है। सबसे पहले डिवाइड किया मैंने x1 is greater than equal to 6, तो मैंने फर्स्ट बाइफर्केशन कर दिया, फर्स्ट डिजिट अमाउंट मेरी आ गई, ये मैंने डिवाइड कर दिया। सेकंड इज x2 greater than equal to 4, दिस वन, और थर्ड इज x2 greater than equal to 8, तो बस 4 ब्रैकेट आ गई, 1 2 3 एंड 4। ओके, लेट्स से जो मेरा 7 और 4 आया दैट बिलोंग्स हियर। ओके, अब मुझे इसका नियरेस्ट नेबर निकालना है। इस केस में लेट्स से इफ आई टेक k इक्वल टू 3, तो उस केस में k इक्वल टू 3 में अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये डाटा पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है, होना चाहिए था अगर मैं एक्चुअली कन्वेंशनल तरीके से काम करता, लेकिन बिकॉज अब मुझे केवल इसी ब्रैकेट में से चूज करना है तो आई हैव टू लीव इट। तो उस केस में बेसिकली आपका परफॉर्मेंस आपका डिक्लाइन हो जाता है। लेट्स से मुझे k इक्वल टू 5 लेना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो k इक्वल टू 5 में लेट्स से मेरे 2 भी आने चाहिए थे। ओके, उस केस में मेजॉरिटी क्लास मेरी बेसिकली ये वाली हो जाती, जो इसको भी मैं यूज करता, लेकिन अब मैं लेकिन मेरे को सिर्फ यही ब्रैकेट यूज करना है तो मैं इनको सबको मैं छोड़ दूंगा। तो उस केस में बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी केनन जो है जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए उसमें परफॉर्म नहीं करती है, और आपके रिजल्ट जो होते हैं बेसिकली आपका जो प्रेडिक्शन आ रहा होता है उसकी एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट स्टिल अगर आपके पास डाटा सेट आपके पास बड़ा है, यू हैव बिगर डाटा सेट, तो उस केस में each and every wicket majority, each and every wicket will be having more or less काफी डाटा उसके पास आ जाता है। तो उस केस में अगर आप बाइफर्केशन भी करोगे क्रेडिट ट्री का तो मोर लेस केस से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो डाटा रिकॉर्ड्स आपके बेसिकली बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक होंगे केवल उनके प्रेडिक्शन में फर्क पड़ेगा, जो मिडिल में या बाकी सब कॉर्नर्स में होगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल कॉर्नर के प्रेडिक्शन वाले डाटा सेट पे डाटा पे आपका फर्क पड़ेगा, बाकी पे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका प्रेडिक्शन आपका इसमें आपका वीक हो जाता है, आपके केनन की परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन हो जाती है। बट दैट इज द ट्रेड ऑफ दैट वी हैव टेकन ऑन द फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपकी टाइम आप देखोगे कंपैरिजन आपके बहुत कम हो गए। पहले आप कंपैरिजन करते आपके 10 रिकॉर्ड के साथ, आप कंपैरिजन करते सिर्फ 2 रिकॉर्ड के साथ, तो इसमें आपके कंपैरिजन बहुत कम हो गए, आपकी केनन बहुत फास्ट हो गई, बट श्योरली योर परफॉर्मेंस विल डिक्लाइन। ओके, बट दैट इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको ट्रेड ऑफ लेना है या नहीं लेना है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपको कन्वेंशनल तरीके जाना पड़ेगा, तो उसमें आपका प्रेडिक्शन टाइम बहुत बढ़ जाएगा। देन यू हैव टू चूज कि आपको केनन भी यूज करना है कि नहीं करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द सम अदर एल्गोरिथम। ओके okay, let's go for the another algorithm, inverted list. That is heavily used in the Google text class news classification. न्यूज क्लासिफिकेशन में आपकी बिहाइंड द सीन्स ये एल्गोरिथम काम करती है, इन्वर्टेड लिस्ट। ओके, और सर्च इंजन में काम करती है। ओके, ओके, लेट्स मेरे पास टेस्टिंग एग्जांपल है। मेरे को बेसिकली मेल को स्पैम और नॉन स्पैम में मुझे को उसको क्लासिफाई करना है। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फिफ्थ, सिक्स, आई हैव टोटल 6 रिकॉर्ड, 6 मेल्स आई एम हैविंग। Let's say this is already labeled as spam, this is ham, spam, spam. Okay, so what I'm going to do, I am going to create an inverted list for each and every word. Okay, so first word send word के लिए मैंने inverted list बनाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो इस एग्जिस्ट इन फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 6 डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। ऐसे आपके टोटल वर्ड जितने में टोटल वर्ड मैंने निकाले, टोटल वर्ड आपके क्योंकि मेरे पास जो नया वर्ड आया है जिसके ऊपर मुझे प्रेडिक्शन करना है उसमें आपका आया नया वाई अकाउंट और रिव्यू। ओके, और मैंने इस सब के लिए निकाली कि टोटल डिक्शनरी क्या है। टोटल डिक्शनरी के लिए मैंने क्या बना दिया, इन्वर्टेड लिस्ट बना दिया। तो यूर वर्ड देखा, यूर वर्ड कौन से डॉक्यूमेंट में आता है, फर्स्ट और 6 में, रिव्यू आता है 6 में, अकाउंट आता है 6 में, पासवर्ड आता है 1 3 और 5 में। टोटल वोकैबुलरी आपकी कंप्लीट हो गई। सारी डाटा वोकैबुलरी के लिए मैंने इन्वर्टेड लिस्ट क्रिएट कर ली है। ओके, लेट्स से मेरे पास नया रिकॉर्ड आता है जिसको मुझे प्रेडिक्शन करना है, अकाउंट रिव्यू, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड है। तो आई विल सी कि अकाउंट कौन से इन्वर्टेड लिस्ट में आता है, हेजर अकाउंट ओनली 6 में। ओके, और रिव्यू किस में आता है आपका 2 और 6 में। तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट से कंपैरिजन करूंगा, 2 और 6 जो भी इसमें बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी को। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस ईमेल विद ओनली
2 or 6 emails. Okay, so I'm not going to compare this mail with all the 6 mails. I am going to compare this mail only with the 2 and 6 mails, 2nd and 6th mails. This is how the inverted list works. Okay. इसमें Why आपके 2, not only 6, no? क्या? Why 2 and 6? Only 6, no? क्योंकि जो आपके जो नए मेल में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो बाकी ईमेल में है ही नहीं, तो बाकी ईमेल में है ही नहीं वो फीचर नहीं, जो है। तो 6 में रिव्यू नहीं है, तो it compare only with 6 or it will compare with 2 and 6? 2 and 6, क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, रिव्यू और अकाउंट 2 वर्ड आ रहे हैं। 2 वर्ड किस में अवेलेबल है? सिर्फ 6 सेकंड और 6 मेल में अवेलेबल है, बाकी किसी मेल में दोनों वर्ड है ही नहीं, तो किसी और मेल में कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फीचर जो है बाकी मेल में है ही नहीं, क्योंकि फीचर टू फीचर कंपैरिजन होता है। अगर ये फीचर आपकी बाकी की मेल्स में है ही नहीं तो आई नीड नॉट टू कंपेयर विद देम। ओके, सो आई एम कंपेयरिंग विद रिव्यू सेकंड एंड 6th मेल। सर इसमें तो ट्रेनिंग होगी ना, वो मतलब बाय द टाइम डिक्शनरी बढ़ती जाएगी अपने आप को ट्रेन करती रहेगी। ट्रेनिंग क्यों होगी? वो नॉर्मल डिक्शनरी बनाएगा, डिक्शनरी में आपका कंपैरिजन करेगा कि दोनों वर्ड किस में आते हैं और उसके साथ वो केवल उन्हीं को बाकी में आपका कंपैरिजन में यूज करेगा। डिक्शनरी तो वन टाइम इवेंट है ना, वन टाइम बना के रख लेगा डिक्शनरी पूरी वो। नहीं, कोई नेक्स्ट ट्रेनिंग टाइम में ऐसा होता है कि अगर कोई तो वो करेगा ही नहीं। अगर कोई नया वर्ड आ गया जो कि डिक्शनरी में है ही नहीं, तो इट विल नॉट कंपेयर। अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है देन इट इज ए हाइपोथेटिकल है कि वर्ड ऐसा जो आपका यूज नहीं करा आपने, तो उस केस में क्या करेगा? फिर सारी डॉक्यूमेंट के साथ कंपैरिजन करेगा। Test data is different from trained data in this case. Model has not been trained. हाँ, तो उस केस में अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो बाकी किसी में है ही नहीं तो कंपेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बाकी वो तो किसी और में है ही नहीं, तो कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक नया वर्ड आ गया जो बाकी किसी मेल में है ही नहीं, तो उस बेसिस से डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नया वर्ड आ गया तो उसको कंपेरिजन करेगा नहीं फिर वो नया वर्ड है, क्योंकि वो एक नई फीचर आई है जो फीचर बेसिकली ट्रेनिंग डाटा में प्रेजेंट ही नहीं है। जो फीचर ट्रेनिंग डाटा में प्रेजेंट ही नहीं है उसको कैसे कंपेयर करेगा वो? उसको लीव कर देगा वो। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड, लोकल सेंसिटिविटी हैशिंग। भी मोर लेस बेसिकली आपको जो फर्स्ट मेथड में देखा था जिसमें कि हम लोग ट्री बनाए थे, केडी ट्री, मोर लेस उसी तरीके से बनाती है। ये भी आपके क्या करती है, डिफरेंट रीजन्स क्रिएट कर देती है। ओके, वहां पे हम लोग जो रीजन बना रहे थे वो हम लोग ट्री के थ्रू बना रहे थे। यहाँ पे जो हम रीजन बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पे प्लेन बनाता है, वो बाउंड्रीज बनाता है, ये बाउंड्रीज बनाता है, ये प्लेन बनाता है। ठीक है ना? लोकल सेंसिटिव हैशिंग, इसका आप मैथ जाके पढ़ सकते हो कैसे काम करता है। ठीक है, इवन आई हैव नॉट रेड दैट। ठीक है, तो मोर लेस ये भी वही करता है, डिफरेंट प्लेन बना देगा। ओके, उसके बाद देखेगा कि जो आपका नया डाटा आ रहा है बेसिकली कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है, जिस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा और जिस प्लेन के अंदर जितने भी सारे आपके डाटा रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ उन्हीं से कंपेरिजन करेगा, बाकी से कंपेरिजन नहीं करेगा। ओके, तो भी मोर लेस बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि बेसिकली आपका ये काम कर रहा था। ओके, बस टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे आपको केडी ट्री आपका डिफरेंट बकेट में डिवाइड कर रहा था, ये भी डिफरेंट बकेट में डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड करने का तरीका यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे डिवाइड करने का तरीका लोकल सेंसिटिव हैशिंग है। देखता है कि आपका डाटा कितना सेंसिटिव है, सबसे आपके डिफरेंट वो बना देता है। आप इसका मैथ्स पढ़ सकते हो, फिर इंटरेस्टेड पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्टली यूज हो जाता है। ओके ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम केनन को यूज कर सकते हैं हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन में। सो दिस इज एग्जांपल गिवन टू अस। बस मुझे हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि जो आपको हैंड रिटन जो आपकी डिजिट है वो बेसिकली कौन सी डिजिट है। ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 16x16 का मेरा जो है साइज है इमेज का। ओके, दिस इज ग्रे स्केल इमेज है। ओके, 8 बिट की, तो 16x16 यानी कि ये 16 और ये 16, यानी टोटल पिक्सल्स कितनी होगी मेरे पास? 16x16, हाउ मेनी? 256, राइट? तो आई हैव टोटल 256 पिक्सल्स, और ईच एंड एवरी पिक्सल जो होता है आपका, जब मैं इमेज कंपेयर करता हूँ, इमेज पे काम करता हूँ, ईच एंड एवरी पिक्सल्स बिकम माय 1
feature. So how many features I have in a for each and every image? I have 256 features. Okay. और इस फीचर की जो इंटेंसिटी होती है, मतलब ये बेसिकली अगर ये ग्रे स्केल इमेज है तो ये इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, तो इसमें बेसिकली इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी 8 बिट स्केल है तो आपके 0 से लेकर 255 तक इसकी इंटेंसिटी होती है. ओके, दैट मींस 0 मींस अगर इसमें वैल्यू 0 है इट मींस ये कंप्लीटली डार्क है, और जैसे जैसे 255 तक होती जाएगी आपकी बेसिकली व्हाइट तक होती चली जाएगी. 255 मतलब एक्सट्रीमली व्हाइट, दिस इज एक्सट्रीमली डार्क. ओके, सो हो सकता है यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी होगी यहाँ पे हो सकता है आपकी 240 हो बिकॉज इज ब्लैक, और यहाँ पे ये व्हाइट है तो हो सकता है आपकी हो सकता है कि 50 के आसपास हो. ओके, नो सॉरी, ये ब्लैक है तो ब्लैक हो सकता है आपकी 0 होगी यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे जो आपका हो सकता है आपका ये 200 के आसपास हो, मोर ब्राइट. ओके, तो ब्राइटनेस मतलब 256 के आसपास, 255, और जितना 0 के आसपास पता चला जाएगा उतना वो डार्क होता चला जाएगा. परफेक्ट. अब मुझे ये दोनों, अब मुझे मेरे पास नई इमेज आती है ए, मुझे इसको कंपेयर करना है बेसिकली कि बेसिकली ये जो इमेज है ये मेरी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है. तो जो भी मेरी नई इमेज आएगी उस इमेज को मैं क्या करूंगा, इमेज टू इमेज कंपैरिजन करूंगा. लेट्स से पहले मैं इसको जो बस गिवन डेटा 20 के साथ कंपेयर करता हूं, तो मेरा इमेज टू पिक्सल कंपैरिजन होगा. इस पिक्सल का इस पिक्सल के साथ कंपैरिजन होगा, डिस्टेंस फंक्शन लगेगा. इसका इसके साथ कंपैरिजन होगा डिस्टेंस फंक्शन के साथ. तो मैं कैसे, अगर मैं लेट्स से मैं यूज करता हूं यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन. ओके, तो कैसे लगाऊंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन, मेरा लगेगा आर और सी, मतलब ये रो है ये कॉलम है टोटल. ओके, ए आर सी माइनस बी आर सी, यानी कि बेसिकली इसकी इंटेंसिटी क्या है उसकी इंटेंसिटी क्या है दोनों को माइनस करेगा, और उसका स्क्वायर और अंडर रूट, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन मैंने यूज किया है. तो ये क्या करेगा, 256 से 256 के लिए क्या निकालेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेगा. ये मेरे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गई. ओके, सब सारे डाटा रिकॉर्ड्स के साथ निकालेगा. ओके, और जिस लेट से k इक्वल टू मैंने कितना लिया हुआ, लेट से मेरे पास ये 7n लिया, यानी k इक्वल टू 7 है. सर यहाँ पे जब हमने बोला सारे डेटा रिकॉर्ड्स, मतलब सारे की सारे 16 क्रॉस 16 पिक्सेल्स? नहीं, 7 सारे डाटा रिकॉर्ड्स का मतलब है कि मेरे पास 1 मिलियन इमेजेस हैं, लेट्स से मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, तो सबके साथ कंपेयर करेगा इस ए को. जो मेरे पास नई इमेज अच्छा, आएगी जिसको मुझे तो जो मतलब ए हमारी पिक इमेज है जिसको कंपेयर करना है, हमारे पास बी सी डी बहुत सारी ऐसी इमेजेस आएंगी, एग्जैक्टली राइट, और सब में हमें वो 256 फीचर्स कंपेयर करके हर एक पिक्सल के लिए वो यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है. जस्ट एग्जैक्टली. ओके, सो अच्छा, दिस इज और माय फिर समेशन. हाँ, यस, समेशन करके सबका डिफरेंस निकालूंगा, इसका सबका सम हो जाएगा, तो मुझे यूक्लिडियन डिस्टेंस मिल जाएगी. ओके, लेट्स से आई हैव टेकन k इक्वल टू 7, तो 7 नियरेस्ट नेबर मैं निकाल लूंगा. ओके, तो 7 नियरेस्ट नेबर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया. लेट्स से दिस इज माय 0, इसके लिए मुझे प्रेडिक्ट करना था, ये मेरे पास इसके लिए मुझे प्रेडिक्शन करना था. और इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसने जो नियरेस्ट नेबर निकाले वो ये निकाले हैं 1 2 इस तरह की इमेजेस नियरेस्ट नेबर निकाली है. तो इसमें मेजॉरिटी क्लास कौन सी है, 0 है, तो ये 0 प्रेडिक्ट कर देगा. ये 2 है तो इसमें आप देखो इसने क्या प्रेडिक्ट किया है, 2 2 2 8 8 8 7. ओके, तो इसमें मेजॉरिटी क्लास में कोई है ही नहीं, नहीं है, तो या 2 8 प्रेडिक्ट की कर है. देगा या 8 प्रेडिक्ट कर देगा, वेटेज निकाल के टॉस करके. ठीक है ना. 4 के केस में देखो ये बेसिकली 4 4 4 है तो 4 प्रेडिक्ट कर देगा. ये आई डोंट नो ये 9 है, ये किसने मतलब इस तरह लिख दिया. ठीक है ना, अभी 9 है या 7 है या 1 है, डोंट नो, लेकिन इसने जो प्रेडिक्शन किया वो 9 4 9 4 9 4. इसमें आप देखोगे तो क्या प्रेडिक्ट करेगा, व्हिच इज लेस, दोनों इक्वल है, ये 7 है ना, तो 9 इज मेजॉरिटी क्लास, तो 9 को प्रेडिक्ट कर देगा. 9 के केस में 9 और 7 7. इस केस में आप देखो तो इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है, ये 9 होना चाहिए लेकिन 7 प्रेडिक्ट कर रहा है. ओके, तो इसकी अगर एक्यूरेसी आप इस मॉडल की निकालोगे, नॉर्मल एक्यूरेसी का हम कोड बनाएंगे, बहुत आसान कोड होता है इसका. तो आपकी इसकी एक्यूरेसी जो आती है वो 95.2% एक्यूरेसी आती है. एसयूएम की आती है 95.8%, और ह्यूमंस की होती है 97.85%. तो मोर सेम है, मतलब हमारा मॉडल देखो ऑलमोस्ट ह्यूमन एक्यूरेसी पे काम कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ द केनन वर्क्स. बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है. ओके, so you guys will do one thing.